थैंक यू लॉर्ड। जब हमें यीशु मिलता है तो हमारा जीवन संवर जाता है, जीवन बच जाता है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। आई थिंक वी वुड इनवाइट brother Philip Tambe, we would invite you in our midst, and let's welcome him as he comes forward. Welcome you, brother. जब हमने स्तुति गान किया है, हम विश्वास करते परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करता है और इसके अंदर फिर परमेश्वर अपने वचन के बीज को बोता है ताकि हम अधिक फल लाएं। आइए हम लोग वचन को मुड़ते हैं, कम फॉरवर्ड, और साथ में उनके ब्रदर सैम इजराइल अनुवाद करेंगे। Amen. Praise the Lord. परमेश्वर Hallelujah. I greet you all in the name of the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. हालेलुया। And I just want to know, मुझे सिर्फ ये जानना है, I want to know, मुझे ये जानना है, are you all happy here? Amen. Mostly the youth that we are talking about. और विशेष तौर से जवानों के विषय में ये कह रहा हूँ मैं। Are you all really happy? क्या आप सच में आनंदित हैं? Amen. आमीन। Are you really happy? Are you really happy? क्या आप सच में आनंदित हैं? Come on. It's still not convincing. Are you really happy to be here? क्या आप सच में आनंदित हैं कि आप यहाँ पर हो? Hallelujah. हालेलुया। I know when there are young people around, that place is very happening place. Hallelujah. हालेलुया। So let's feel the liberty as we sit here, जैसे हम यहाँ बैठे हम उस स्वतंत्रता को हम महसूस करते हैं। because wherever there is a Holy Spirit, there's freedom. Where there's Holy Spirit, there's freedom. आमीन। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता भी है। Amen. And I really want to thank the committee for giving me a chance to stand here और मैं कमेटी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये समय दिया यहाँ पर खड़े होने to के लिए, minister the word of God. कि परमेश्वर के वचन को मैं प्रचार कर सकूँ। And we are very happy to have a senior pastor here, और मैं यहाँ पर बहुत आनंदित हूँ कि हमारे बीच में एक बुजुर्ग पास्टर है वरिष्ठ pastor, senior pastor, और सीनियर पास्टर है Pastor Isaac Vasant Kumar. And I had the privilege for interpreting him when Pastor was in Chhattisgarh for almost 5 days, I guess. And also in the last youth camp, I had the privilege of translating for Brother Kingsley. And when the great man of God are sitting here, and I feel very little in their presence. But as it has been fallen into my Lord to stand and minister the word of God, and it has fallen in my Lord to stand here and minister the word of God. So let's do it with all our heart. And I want to thank Brother Benny. He really did a good job. How many of you all really enjoyed the worship, the singing? Amen. Amen. And now let's move to the Word of God. I would request everyone to please stand on our feet. करता हूँ अपने स्थानों पर आप खड़े होंगे। And I believe we all have come in prayer. और मैं विश्वास करता हूँ हम सब प्रार्थना के साथ यहाँ आए हैं। And we are here to be blessed. और हम यहाँ आए कि ताकि हम आशीषित हो सके। We are here to be filled with His Holy Spirit. और हम यहाँ आए हैं ताकि उसके पवित्र आत्मा से हम भर सके। Amen. This is don't take it as just ordinary camp that's happening year after year. कि ये सिर्फ एक साधारण कैंप नहीं जो हर साल दोहराता है। But each and every service you take it seriously. परंतु हर एक सभा को आप बहुत सीरियसली लीजिए। Who knows the service will be last for some of us. और कौन जानता है कि हम में से किसी के लिए आखिरी कैंप भी हो सकता है। Right. We expect, we anticipate that maybe the next camp I'll be there. हम अपेक्षा करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगला कैंप भी होगा। Yeah, that's okay to think and anticipate for future.
और वो ठीक है कि भविष्य के विषय में हम उस बारे में सोचे, But as we know that we are living in these last days, परंतु हम जानते हैं कि हम इन अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। so the service may be the last one for someone. और हो सकता है ये सभा किसी के लिए आखिरी सभा हो, Yes, so that's the reason. Let's take this seriously. इसलिए इस बात को हम बहुत महत्वपूर्ण लेंगे। Let's take the singing seriously. और हर एक हम देखिए इस चीजों को सीरियसली Singing. लेंगे, इस गाने गीत को। Amen. As Brother Benny was saying that don't wait that he will say clap your hands then clap. You are young people. और जैसे भाई बहन ने कहा कि आप रुकिए मत कि आपको थाली बजाने का है, आप जवान बच्चे हैं, Feel free. आप आजादी को महसूस करिए। When the preacher, the word is going on. और जब वचन चलता है, If you feel like standing and praising God, यदि आप उठकर परमेश्वर की स्तुति करना चाहें, nobody will stop you. आपको कोई नहीं रोकेगा। Hallelujah. हालेलुया। Where there's a Holy Spirit, और जहाँ पवित्र आत्मा है, the Spirit of God, वो परमेश्वर की आत्मा, there's liberty. वहाँ पर स्वतंत्रता है। Hallelujah. हालेलुया। Let's break that ice that's forming on us. और आज हम उस जो हम पर बंधन है उसको हम तोड़ दे, बर्फ को। बर्फ की, hallelujah. हालेलुया। Because we are not doing any formality by coming here. क्योंकि हम यहाँ पर आने से कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, No, we are not doing any formality. हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, We are coming here to praise His holy name. हम सिर्फ उसके पवित्र नाम की स्तुति We करने are आए come हैं। here to worship Him. हम उनकी भक्ति आराधना करने आए And हैं। let's do with all our heart. और आइए हम अपने पूरे हृदय से इसको करें। Hallelujah. हालेलुया। Are you all with me? क्या आप सब मेरे साथ हो? May the Lord bless you. और परमेश्वर आपको आशीष करे। And please pray for me. और कृपया आप मेरे लिए That प्रार्थना I may करें। be able to stand and minister the word. और मुझे यहाँ मौका मिला कि यहाँ पर खड़े रह के प्रचार करूँ। I'm not so well versed in English. और मैं इतना अंग्रेजी में अच्छा नहीं हूँ। Maybe Brother Winford or somebody will help me if I get stuck somewhere. और अगर मैं कहीं अटक जाऊँ तो भाई विनफ्रेड या कोई मेरी मदद करना। Amen. But I hope we have all the same spirit. परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ हम सबका एक ही Amen. So आत्मा the है। language won't be a barrier. तो भाषा हमारे लिए कोई भी बीच में रुकावट नहीं होगी। Amen. And God will help our young brother, Brother Sam, और परमेश्वर हमारे जवान भाई सैम की भी मदद to करे interpret. कि इसको अनुवाद करे, Because I know to stand here and interpret. Hallelujah. क्योंकि मैं भी यहीं खड़े रह के अनुवाद करता हूँ। And it takes the Spirit of God to do that. और ये परमेश्वर की आत्मा की जरूरत पड़ती है इसको करने के We लिए। haven't done any course on translation. और इन्होंने कोई अनुवाद करने के लिए कोई कोर्स नहीं Right. किए। We wait on the leading of the Lord. तो हम परमेश्वर के नेतृत्व में हम उस पे विश्वास करते Hallelujah. हैं। So please pray for me. तो आप Amen. मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। Let's go to the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Amen. The theme for the camp is draw nigh to God. और ये थीम है कैंप का कि आप परमेश्वर के करीब आइए। Amen. Let's open the verse. आइए हम James वचन- chapter 4 verse 8. हम पवित्र शास्त्र में से याकूब के उस किताब में से 4 अध्याय को हम खोलेंगे। Amen. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. याकूब में हम 4 में 8 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे जिंदा खुदा प्रभु, हम फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं लॉर्ड। प्रभु, अपने सिर ही नहीं बल्कि हृदय को भी झुकाते हैं लॉर्ड। प्रभु, हम धन्यवादित है कि आपने यह अवसर हमारे लिए प्रदान किया। यहाँ आने से पहले हम जहाँ कहीं भी थे प्रभु, आपने हमें देख लिया है लॉर्ड, कि हम जैसी भी अवस्था में थे, लेकिन आपके सम्मुख आए हैं लॉर्ड, आपकी आशीष पाने के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हर एक जवान भाई बहनों को आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड, और जो प्रभु कोशिश कर रहे हैं प्रभु कि आपके करीब आए प्रभु, यदि कोई संसारिकता उनके जीवन में पाई जाती है तो उसे आप प्रभु निकाल दीजिए, और आज की सुबह होने पाए, ये 3 दिन की कैंप मीटिंग्स होने पाए कि उनके जीवन के लिए एक बदलाव होने पाए लॉर्ड। उनके हृदय से आप बातें कीजिए लॉर्ड, कि वे अपना हृदय आपको समर्पित करें लॉर्ड, और उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड। सभी बहनें, सभी भाइयों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपकी अनुग्रह को चाहते हैं लॉर्ड, क्योंकि आपके अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं है लॉर्ड। प्रभु, हम अपने बुद्धि ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते लॉर्ड, इसलिए क्योंकि आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु, आपकी आत्मा हम चाहते हैं लॉर्ड। हम सबको प्रभु आप संभाले रखिए। इन 3 दिनों की प्रभु सभा को जब हम देखते कि चिलचिलाती गर्मी में प्रभु सबको यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ध्यान प्रभु आप पर लगा हुआ है लॉर्ड। प्रभु, हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए, वातावरण को अपने नियंत्रण में लीजिए। जो भाई बहन रास्ते में, उन्हें भी प्रभु आने में आप सहायता कीजिए कि हम सब एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके लॉर्ड। सारी महिमा आपको मिल सके। पढ़े गए वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। You all may be seated. आप सभी बैठ सकते हैं। Amen.
Hallelujah. हालेलुया। It's already late, 12 o'clock. So how long we can go to that? Okay, amen. We are all staying here, so we don't have to worry about traveling and going back to home, right? तो हम सब यही रुकने वाले, तो हमें कोई परवाह नहीं, हमें इस समय की परवाह नहीं कि हम घर जाएंगे But करके। still, I'll try to stick to time. तो भी मैं समय से जुड़ा रहूंगा इसमें ही। Amen. As the Bible verse for the main theme for the camp, as brothers have decided, और जैसे भाइयों ने ये चुना है कि ये थीम जो होगा इस कैंप का, draw nigh to God, परमेश्वर के निकट आओ and He will draw nigh to तो you. वो भी तुम्हारे निकट आएगा। Amen. Amen। I want everybody to pay attention. और मैं Hallelujah. मैं सबका ध्यान चाहता हूँ यहाँ And पर, especially the youngsters. Amen. और विशेष करके जवानों, If you're there with me, I'll be able to preach. यदि आप यहाँ ध्यान देंगे तो मैं आपको प्रचार कर Or else पाऊंगा, I'll have to wind up halfway. नहीं तो फिर मुझे आधे में ही बंद करना पड़ेगा। Amen. And I just want to know how many of you young brothers and sisters are message believers. और मुझे ये पूछना है कि आप में से कितने भाई बहन हैं जो संदेश के विश्वासी है? Raise your hands nicely. अपने हाथों को उठा सकते हैं। Almost 90%, more than 95%. लगभग 95% से ज्यादा लोग, लगभग सभी, amen, almost everyone are from message believing churches. और लगभग सभी संदेश के विश्वासियों के कलीसिया से हैं। So I'm not talking to any strangers. तो मैं किसी अनजान से नहीं कह रहा, I'm talking to a known people तो मैं अपने जानने वाले लोगों से ही कह रहा हूँ, who knows the prophet, जो अपने नबी को जानते हैं, who knows the prophet's message, जो नबी के संदेश को जानते हैं, and listening this prophet message every Sunday, और हर रविवार इस नबी के संदेश को सुनते हैं, maybe every Wednesday, और हर बुधवार को, every Friday. हर फ्राइडे को। Some are born in message believing families. और बहुत से ऐसे ही कि जो संदेश के विश्वासियों के परिवार में जन्मे हैं। Amen. So we are not any new to this message. तो हम इस संदेश के लिए नए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So let's pay attention on the message, तो हम संदेश पे ध्यान लगाएंगे, because the theme says draw nigh to God. क्योंकि शीर्षक ये कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, Come close to God. परमेश्वर के करीब आओ। And the first step that you took to come close to Him, और सबसे पहला कदम जो आपने उसके करीब आने को रखा, I guess when you took decision of giving your name for registration for the camp, वो सबसे पहला कदम आपने जो रखा है वो आपका नाम दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, इस कैंप के लिए। because you might have some other things on your agenda, क्योंकि आपके देखिए कार्य में ऐसे बहुत सारे काम रहेंगे, maybe going for vacation, हो सकता है आप कहीं वेकेशन के लिए because this जाए, is a holiday season, क्योंकि ये छुट्टियों का or मौसम है, spending time with your relatives. या अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताए। But there you thought that what is more important for you, लेकिन आपने ये विचार किया कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, and you decided on coming here. और आपने ये निर्णय लिया कि आप यहाँ आए। So I guess that was your first step. तो मैंने सोचा कि ये आपका पहला कदम है। Then you packed your bag, फिर आपने अपना बैग को तैयार पैक किया, and through travels you reached here. और प्रयाण करते हुए आप यहाँ पहुंचे, The reason you have come here, और यहाँ आने का आपका कारण so that you can come close to God, ताकि आप परमेश्वर के निकट आ so that सके, you can have fellowship with Him. ताकि हम उसके साथ संगति कर We are सके। not come here, as brother said, to meet and greet each other. और जैसे भाई ने कहा, हम एक दूसरे से यहाँ मिलने नहीं आए, Not come here to just to be seen, और यहाँ पर सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं, or not to be seen, और सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं, or not come here as a representative of churches, या अपने कलीसिया के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, because church is not going into the rapture. क्योंकि कलीसिया रैप्चर में नहीं जाने वाली, But from the church, the bride is going to in the rapture. परंतु कलीसिया के अंदर से वो दुल्हन ही वो रैप्चर में जाने Hallelujah. वाली है। And how many of you are happy that we are a part of the bride? और आप में से कितने लोग खुश है कि आप उस दुल्हन के एक झुंड हैं? Amen. And the theme says, come close to God. और हमारा शीर्षक यही कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ। Amen. And the brother Branham says, and the world seems to be in the most evil age that ever was. और नबी एक संदेश में कहते हैं कि आज संसार इतने एक युग में आ चुका है, The most evil age. सबसे एक बुरा युग। Hallelujah. Hallelujah. The evils of all the different ages have been dumped in this last age. सारे बुराई जो हर युग में थे वो सारे इस युग में डाले गए। So we can see how difficult for youngsters it is living in this age. तो हम देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है जवानों को इस युग में जीने के लिए। It's the most evil age. ये सबसे बुरा युग है, And you have to fight the evil, the wickedness on every corner, every way. आपको हर रास्ते पर, हर कोने पर इस सारे बुरे इस चीजों से आपको लड़ना होता है। In fact, you have to fight your own thoughts. और सबसे बढ़कर आपको अपने विचारों से ही लड़ना पड़ता है। Hallelujah. Hallelujah. And now we have come here, and as per the word, we are trying to come close to God. और जैसे हम इस वचन के हम यहाँ आए हैं कि हम परमेश्वर के निकट आने आए हैं। Amen. Amen. So that means you have to come to close to God, means there are certain things which will hold you back.
तो जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं यानी कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको पीछे रुकाती है। And Brother Branham says, और भाई ब्रनम कहते in the हैं message having conference, और उस कॉन्फिडेंस उस संदेश में सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस उस संदेश में the world is moving among us. सम्मेलन उस संदेश में कि आज संसार हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। Now I want you to pay attention on this. और मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान लगाएं। That's the reason I asked you how many are from message believing churches. यही कारण था कि मैं आपसे पूछा कि आप कितने लोग संदेश के Sometimes कलीसिया में we से? take pride in that saying we are from message believing churches. और कुछ समय हम वो गर्व रखते हैं हमारे अंदर कि हम अंतिम समय के संदेश के कलीसिया में से हैं। It's good वो अच्छा है to take pride in that. कि आप उसमें गर्व महसूस करें, But also we have to be alert at the same time. परंतु हमें उसी समय सावधान भी रहना Brother है। Branham says that and we find tonight और भाई ब्रनम कहते हैं कि आज रात हम ये देखते as हैं everyone knows कि हर कोई जानता है that we are really losing ground. कि हम सच में अपने भूमि को खो रहे हैं। Brother Branham is saying in 1960 और नबी भाई ब्रनम 1960 में ये कहते हैं that we are losing ground as a people. कि हम मनुष्य होने के कारण हम देखो मनुष्य के नाते इस भूमि को हम खो रहे हैं। Why we are losing ground? क्यों हम भूमि खो रहे हैं? As a believer, एक विश्वासी के नाते because the world is creeping in among us. क्योंकि देखिए आज संसार हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। The world is creeping in among us some way. आज संसार हमारे अंदर किसी तरह से वो घुस रहा है। You can see it आप उसे देख पा रहे हैं or feel it या उसको महसूस कर पा रहे हैं and can tell it और आप इसको बता सकते हैं that the world is moving among us. कि वो संसार आज हमारे अंदर वो घूम रहा है। Amen. We can see, we can feel and we can tell it. हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं और हम इसको बोल भी पा रहे हैं। How we can tell it? हम इसको कैसे कह सकते हैं? Just look at the people, the youngsters of the message. कि आप संदेश के जवान विश्वासियों को देखिए। As soon as a new haircut style comes, जैसे ही नया हेयर कट स्टाइल आता है we can see the haircut style in the church also. हम उस हेयर कट स्टाइल को चर्च में भी देख पाते हैं। I'm not saying in every churches. मैं नहीं कह रहा कि हर कलीसिया में। Prophet says the world is creeping. नबी कह रहे हैं कि वो अब रेंग रहा है। So we have to be alert. तो हमें सावधान रहना है How the world is creeping. कि कैसे वो संसार हमारे अंदर घुसता है। Because we are open to all the evils of this world. क्योंकि हम सारे इस बुरे आत्माओं के लिए इस समय खुले हैं। All the wickedness. सारे बुरे आत्माओं के There लिए। was a time that Brother Branham was talking about television. और एक समय था जब भाई ब्रनम जो है टीवी के ऊपर प्रचार कर रहे थे। Now we have there's no television in each and every home, so we don't have to talk about television. तो आज हम हर एक के घर पे टीवी तो नहीं है तो परंतु उस पे हमें बात करने की जरूरत नहीं। Right, but now there is something that's in our pocket परंतु आज कुछ तो है जो हमारे जेबों में है that is worse than television. जो टीवी से भी बहुत बेकार है। So we बढ़कर। can see how the world is creeping in churches. तो हम देख सकते हैं कि संसार कैसे You are maybe working, और हो सकता है आप काम करते हैं so there is a chance that we might get influenced by the worldly thinking. तो ऐसा हो सकता है कि संसार के विचारों के उसके अंदर हम जाकर गिर सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। We can be influenced by the Babylonish thinking. और बेबीलोनी इस विचार से हम प्रभावित हो सकते हैं। So that's the reason Brother Branham says, I think this would be a wonderful time for us. और नबी कहते हैं इसलिए मैं ये विचार करता हूँ ये बहुत हमारे लिए अद्भुत समय होगा। I think this will be a wonderful time for us. कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे लिए ये अद्भुत समय होगा। I think it will be a wonderful time for us. मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक अद्भुत समय होगा। Amen. You are waiting for my next for me to complete the sentence. और आप शायद रुक रहे हैं कि मैं अगला सेंटेंस पूरा But करूं। just believe that we'll have a wonderful time. परंतु आप इस पे विश्वास Hallelujah. करो कि हमारे पास एक अद्भुत समय है। I think we'll have a wonderful time और नबी कहते हैं कि मैं विचार करता हूँ एक अद्भुत समय to होगा have a conference ताकि हम एक सम्मेलन हो सके and talk it over with God और परमेश्वर से बातचीत कर सके and find out what's the matter. और ये जान सके कि विषय क्या है, What's the matter? कि विषय क्या है, What is blocking our spiritual growth? क्या हमारे आत्मिक उन्नति को रोक रहा है। Right? We have come here to see what is blocking our spiritual growth. कि हम यहाँ आए ताकि हम देख सके कि हमारी आत्मिक उन्नति को क्या रोकता है। How the world is creeping among the churches. कैसा संसार इस कलीसिया के अंदर घुस रहा है। Are we trying to be so friendly with the world? क्या हम संसार के साथ इतनी ही अच्छी दोस्ती रख रहे हैं? Amen. Because we see this we can see it, as Brother Branham said that day, that we can see it, we can feel it.
और हम आज देख पा रहे हैं क्योंकि नबी ने वहां कहा है कि हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं and we can tell it. और हम बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। Same thing that we can see today, और वही चीज आज भी हम देख पाते हैं, we can feel it, हम महसूस भी कर पाते हैं and we can tell it. और हम उसको बोल भी सकते हैं। But my dear brothers and sisters, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, this camp is organized ये कैंप जो है आयोजन किया गया है to help you. ताकि आपकी सहायता करे। Amen. आमीन। It's organized so that we can help you, इसकी आयोजन इसलिए की गई कि हम आपकी मदद कर सके, that you can have a close relationship with God. कि आप एक परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता रख सके। 3 days you are away from your families, 3 दिन आप अपने परिवार से दूर हो and you are here with like-minded people. और आप यहाँ पर Like-minded people. और समान आप विचार के. छोटे विचार के लोगों के साथ यहाँ है। समान विचार के. समान विचार, क्षमा करिए। Amen. So we are here to come to talk it over with God. और हम यहाँ आए था कि हम परमेश्वर से बात कर सके। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are here to talk with God? आप में से कितने हैं जो यहाँ परमेश्वर से बात करने आए हैं? Draw close to God. परमेश्वर के निकट आइए। Draw nigh to God. परमेश्वर के निकट आइए। And then He will come close to तो you. वो आपके भी निकट आएगा। Hallelujah. Hallelujah. The first step is you have to come close to God. सबसे पहला कदम यही है कि आपको परमेश्वर के निकट आना है। And I think we should be thankful to God that there's no internet, there's no network coverage. और मैं शायद ये खुशी की बात है, परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं है। Because the main obstacle is the internet and the phone. और सबसे बड़ा जो रुकावट है वो इंटरनेट और फोन ही है। And the youngsters without Wi-Fi, without internet, they get very bored. और बिना वाईफाई इंटरनेट के जवान बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। Correct me if I'm wrong. और मुझे ठीक करना अगर मैं गलत हूँ तो। Because I know on social media without WhatsApp you cannot stay. क्योंकि मैं जानता हूँ बिना सोशल मीडिया व्हाट्सएप के आप नहीं Without रह सकते। Facebook, बिना फेसबुक के, without Instagram. बिना इंस्टाग्राम के। Don't take pride when I'm counting these apps and you're thinking that, oh, we are on. No, I don't want you to be on that. आप इस बात का गर्व महसूस मत करना कि हाँ ये जो ऐप का नाम ले रहे मुझे पता है, आप No. उसमें नहीं होने चाहिए। No, this social media this is Babylonish thinking that is coming and creeping in our lives. ये सोशल मीडिया सारे बेबीलोन के विचार है जो आपके अंदर संसार की बातें घुस रहे हैं। And we have to be guard against it every time. और हर समय हमें उससे जो सुरक्षा रखना है खुद को। Hallelujah. So what is sin? कि पाप क्या है? Prophet says sin is unbelief. नबी कहते हैं पाप अविश्वास है। Sin is unbelief. और पाप जो है वो अविश्वास है। And what is unbelief? Though you have doubted, और अविश्वास क्या है कि क्योंकि तुमने शक किया, though you have wondered when you would receive the Holy Spirit, और आपने शक किया कि वो पवित्र आत्मा आपको मिल पाएगा or would be healed or not. और चंगाई पाएंगे या नहीं। Amen. Many times we doubt और बहुत समय हम भी शक करते हैं whether we'll receive Holy Spirit or not. क्या हमें पवित्र आत्मा मिलेगा या But नहीं। when we come here, परंतु जब हम यहाँ आते हैं, don't keep any doubt in your minds. अपने मन में कोई भी शक Don't मत doubt रखना। anything. किसी भी चीजों पे शक मत करना। Because the Bible, there's a verse in Isaiah. क्योंकि यशायाह में ऐसा कहा गया है, If your sin may be as scarlet as red, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो it will be as white as snow. तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। Hallelujah. Your Hallelujah. sin. Hallelujah. आपके पाप। And prophet says sin is unbelief. और नबी कहते हैं पाप अविश्वास है। And he rephrased the words in a such a way, और नबी ने उसको ऐसे फिर से उसको कहा though your doubts be as red as crimson. कि चाहे आप अर्गवानी रंग के हो, चाहे आपके पाप, Your doubts, आपके शक, your doubts be as red as crimson, कि आपके शक चाहे लाल रंग के हो, they shall be white as snow. तो भी वे हिम के समान उजले हो Because जाएंगे। God made the promise. क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। And if God made the promise, और यदि परमेश्वर ने ये वाचा किया है, God will keep the promise. तो परमेश्वर अपने वाचा को निभाता है। Hallelujah. हालेलुया। So now what you're fighting with? You're fighting with your doubts. तो आप अब किससे लड़ रहे हो? अपने ही That's what Brother Benny शक was से लड़ रहे trying to हैं। break the ice. वही भाई बहनी जो है आपके उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश की है। Amen. We have come in the presence of a Lord. हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। You are in your Father's house. आप अपने पिता के घर में हैं। Can't we remember the verse? He says, I was glad when they said unto me, let's go into the house of the Lord. कि देखिए क्या आप उस वचन को सोचते नहीं है कि आइए हम परमेश्वर के भवन में जाइए। वो मुझे बात बहुत खुशी दिलाती You are है। in His presence. आप उनके उपस्थिति में हैं। Don't be so stiff. आप इतने मजबूत मत बनिए। Break the ice that is formed over you. आपके ऊपर जो बर्फ बना है उसको तोड़ दीजिए। Open your heart. अपने हृदय को खोल दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। God is going to fill with His Holy Spirit. परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। We are not with the Catholic mindset. हम कोई कैथलिक माइंडसेट से नहीं है। We are Pentecostals. हम पेंटिकॉस्टल्स हैं। We are real Pentecostals. हम सच्चे पेंटिकॉस्टल्स हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because Pentecostal is not only the name of a church. क्योंकि पेंटिकॉस्टल सिर्फ एक कलीसिया का नाम
नाम नहीं। Brother Branham says it's an experience. भाई ब्रनम कहते हैं वो एक अनुभव है। So if you have come here, you have to have an experience. तो यदि आप यहाँ आए हैं तो आपको भी एक अनुभव की जरूरत है, Because the word says क्योंकि वचन कहता है in Isaiah 55:6, यशायाह 55:6 में, seek ye the Lord जब तक यहोवा मिल सकता है while he may be found. तब तक उसकी खोज में रहो। Seek ye the Lord जब तक यहोवा मिल सकता है while he may be found. तब तक उसकी खोज करो, Seek the Lord while he may be found. कि आप उसे ऐसा ढूंढिए कि आप उसको पा सके। This is the time of grace. ये अनुग्रह का समय है, It's a time of grace for each one of us. ये हम हर एक के लिए अनुग्रह का समय है That we can come and have a get together like this. कि हम यहाँ पर एक संगति में आ सके। Just see the condition of our country. कि आज हमारी देश की In many परिस्थिति देखिए, states we can't have a fellowship like this. बहुत से स्टेट्स में हम ऐसे संगति नहीं कर पाएंगे। The squeeze is coming. कि दबाव जो आ रही है, In Shemra in Chhattisgarh they have already stopped fellowshipping on Sunday. और छत्तीसगढ़ में देखिए वहां पर रविवार को जो फेलोशिप करना, संगति करना वहां पर रोक दिया गया It's है, going only on Zoom. It's happening only on Zoom. और सिर्फ वो जूम में हो रहा है अब। And I was in Hyderabad preaching at Pastor Sam Kota's church. और मैं हैदराबाद में था, फास्टर शांतमोहन के कलीसिया में प्रचार कर In रहा था। Telangana nothing as such sort, nothing is happening over in that state. और तेलंगाना में अभी के लिए वहां पर ऐसा कुछ But नहीं while हो रहा। preaching I was just giving an example. परंतु जब मैं प्रचार कर रहा था वहां पर एक You see, उदाहरण दे it's रहा था happening in UP, Chhattisgarh and other northern states. कि यूपी, छत्तीसगढ़ और बाकी सारे स्टेट्स में ऐसा हो And रहा by है। the time I finished my preaching, और हो सकता है मैं प्रचार समाप्त करने पर and Pastor Samuel came and took the last song, फास्टर सैमुअल कित ने वो लास्ट गीत को, आखिरी गीत को लिए, and he got a call in his office और उनको अपने कार्यालय से एक फोन आता है that there were some church members, they were watching online this message, और जो विश्वासी जो इसको ऑनलाइन देख रहे थे, and other elements of the society came and they disrupted the service. और जो वहां पर सोसाइटी में रहने वाले लोग ने आके उस पूरे सभा को उन्होंने रोक दिए। So you know what is happening around us. तो आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। We should be very happy that God has given this privilege, हमें बहुत खुश होना है कि ये Hallelujah. सौभाग्य हमें मिला है that we can come together. कि हम एक साथ आ सके। Hallelujah. हालेलुया। So seek ye the Lord while he may be found. कि आप परमेश्वर की खोज करिए, कि तब वो उसकी खोज करो कि तुम्हें यहोवा मिल सकता है। Call ye upon him while he is near. जब तक वो निकट है तब तक उससे पुकारो। Let the wicked forsake his way, दृष्टि अपनी चाल चलन और अनाथकारी अपने सोच विचार छोड़कर, and the unrighteous man his thoughts, अपने अनाथकारी अपने सोच विचार छोड़कर and let him return unto the Lord. यहोवा की ओर फिरे। Hallelujah. हालेलुया। Draw nigh to God परमेश्वर के निकट आओ and he will draw nigh to you. और वो तुम्हारे निकट आएगा। It's an invitation from the Lord. ये एक परमेश्वर के द्वारा आमंत्रण है। He has given each one of us an invitation to come. वो हम हर एक को आमंत्रण देता है आने के लिए। So let us come. तो चलिए हम आए। In the last book of the Bible, और बाइबल की आखिरी किताब in में Revelation 22:17, प्रकाशित वाक्य 22:17 it says, में, whosoever will, और वहां पर कहते हैं आत्मा और दुल्हन, whosoever will, जो देखिए जो कोई चाहे, whosoever will. जो कोई चाहे, It depends on your will. ये आपकी चाहत के ऊपर है। Whosoever will, जो कोई चाहे let him come. वो आए, Let him that heareth और जो सुने say, come. वो भी कहे आ, Let him who's thirst और जो प्यासा है come. वो आए। Hallelujah. हालेलुया। If we are thirsty, we'll come to the fountain of the living और water. यदि हम प्यासे हैं तो हम उस जीवन के सोते के पास आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If we are thirsty, because this is an invitation from the Lord. यदि हम प्यासे हैं तो जरूर परमेश्वर से हमें आमंत्रण मिलता And है। when the Lord is inviting you, और जब परमेश्वर आपको आमंत्रित करता है, we should pay heed. Hallelujah. हम उसके We should pay attention to the invitation. उसके निमंत्रण पर हमें ध्यान लगाना है। What if Brother Branham said the president of USA invites you? और भाई ब्रनम कहते हैं कि अगर यूएसए का प्रतिनिधि यदि आपको बुलाता है, राष्ट्रपति, Or what if the president of India invites you और क्या भारत का अगर राष्ट्रपति यदि आपको बुलाता है to give you Padma Bhushan ताकि आपको पद्मभूषण दे or सके Bharat Ratna, या भारत रत्न, and you will feel so proud, और आपको इतना गर्व महसूस happy and होगा, excited. इतने खुश आप रहेंगे, Yeah, it will be on your social media apps. वो आपके सारे सोशल मीडिया ऐप्स में हो Yeah, on जाएगा, every status और आपके हर एक स्टेटस that में I have been invited by the president of India. कि मैं जो है राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर बुलाया गया। You take pride in that invitation. आप उस आमंत्रण में अपने गर्व को रखते हैं, But here the Lord of heaven is calling you. परंतु यहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर The प्रभु Lord आपको of बुलाता Lord is है, calling you. जो प्रभुओं का प्रभु आपको बुला रहा है। Hallelujah. Hallelujah. How much more
more we should be excited. हमें कितना और आनंदित होना है। He is inviting you. वो आपको निमंत्रण दे रहा Come है। close to Lord. आप परमेश्वर के निकट Then He आइए, will come close to तो you. वो आपके निकट आएगा। Hallelujah. हालेलुया। He wants to reveal Himself to you. वो अपने आप को आपके पास प्रकट करना Amen. चाहता Brother है। Branham said, but remember, भाई ब्रनम कहते हैं, लेकिन याद रखिए, not the president, अभी राष्ट्रपति नहीं, but the God of heaven has given you an invitation परंतु स्वर्ग का वो परमेश्वर आपको आमंत्रण दिया to है come for a conference, ताकि आप एक सम्मेलन में to आए, have a conference with Him. ताकि आप परमेश्वर के सम्मेलन कर And this सके। is for your good. This is for your good. ये आपके भलाई के लिए है। That's the reason all the pastors have come together इसके लिए सारे फास्टर्स एक साथ आए हैं and decided that we'll have a 3-day conference here. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 3 दिन की यहाँ पर कैंप सभा रखें। It's not because they didn't have any pastime इसके लिए ये नहीं है कि उनको समय बिताने के लिए कुछ नहीं or था, they were free. या वो ऐसे खाली थे। कि चलो कुछ तो करते हैं, खाली बैठे. They didn't think that way. उन्होंने ऐसा नहीं विचार किया। They had a burden for you. उनको आपके लिए एक बोझ था। They went in prayer. वो प्रार्थना में गए Then they got the theme. और उनको ये थीम शीर्षक Then they मिला। worked here. Hallelujah. वो यहाँ पर कार्य किए, काम And I किए, believe from January they are working. और मैं विश्वास करता हूँ जनवरी से हम इसके लिए काम कर रहे And हैं। that's why we can have this meeting here. इस कारण आज हम यहाँ इस सभा को कर पा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We have come here to have a conference. हम यहाँ पर आए था कि हम एक सम्मेलन कर सके। And Brother Branham says, और भाई ब्रनम कहते हैं, now conference is a get together. और सम्मेलन क्या है? एक साथ जुड़ना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Amen. I don't want physical present and mentally absent. मुझे ऐसा नहीं थी कि शारीरिक तौर पर आप यहाँ Let's but रहे। just for a little moment give all your attention, मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान भी यहाँ लगाइए, all your concentration आपका पूरा ध्यान यहाँ on पर the word of God. परमेश्वर के वचन पर। Hallelujah. हालेलुया। Conference is a get together. सम्मेलन जो है, जो एकत्रताना है, And usually conference is held in a time in a state of emergency. और आम तौर पर जो सम्मेलन जो है वो एक आपातकालीन. आपातकाली परिस्थिति पे रखा जाता है। In a state of emergency. आपातकाली परिस्थिति में ही रखा जाता है। You say, brother, what is an emergency that we have kept the conference? आप सोचेंगे भाई ऐसा क्या आपातकाली परिस्थिति आई कि हमें सम्मेलन रखना है? But Malachi 4, मलाकी 4, behold the great and dreadful day of the Lord. कि परमेश्वर के भयानक दिन के पहले I will send you Elijah the prophet. मैं तुम्हें एलिया नबी भेजूंगा। This is the emergency time. और यही आपातकाली का परिस्थिति ये Because स्थिति the है, judgment of God is coming on this world. क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस धरती पर आ रहा है। If this is not emergency, यदि ये आपातकाली नहीं है I don't know when it will be an emergency. तो मुझे नहीं पता आपातकाली कब This is होगा। the emergency time. यही आपातकाली का When the समय world है, is creeping in the churches, जब ये संसार इस कलीसिया में घुसता है, families are breaking up, परिवार टूटता है, divorce rates are going up, और डिवोर्स रेट्स बढ़ता है, homosexuality rising up. होमोसेक्सुअलिटी आगे बढ़ता When you है। can see all those things, जब आप ये सारी चीजों को this देखते is an हैं, emergency. यही आपातकाल का समय है। Hallelujah. हालेलुया। And if it's an emergency, we have to call a get together. और यदि ये आपातकाली का समय है तो There हमें has to be एकत्र a होना है। conference. तो ये सम्मेलन का समय है। Hallelujah. हालेलुया। And in conference, we will talk about it. Amen. उस सम्मेलन में हम इस विषय We'll पे बात talk with करेंगे। God. हम परमेश्वर से बातें करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because before the judgment, क्योंकि न्याय के पहले God will make a way of escape. परमेश्वर हमें बचने के लिए एक रास्ता बनाता है। Before the great and dreadful day of the Lord, परमेश्वर के भयानक दिन के पहले I will send you the message of grace. मैं तुम्हें अनुग्रह का संदेश भेजूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Malachi 4 was a message of grace. मलाकी 4 अनुग्रह का संदेश आपका And था, this is the way of escape. और ये आपका एक छुटकारा का मार्ग है। Hallelujah. हालेलुया। That's where the voice came not from the earth, इसलिए वाणी जो है धरती से नहीं, but in Revelation chapter 18 verse 4, परंतु प्रकाशित वाक्य 18:4 में the कहता है, voice came from heaven. वाणी जो है वो स्वर्ग से उतरी Come out of her, my people, कि मेरे लोग बाहर निकलो, because this is an emergency. क्योंकि एक आपातकाली का समय है। Hallelujah. हालेलुया। We believe that we are in the last days, हम विश्वास करते हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं, in the shadow of his coming. कि उसके आने के परछाई में। Do we believe that? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? Say amen. तो आमीन कहिए। Not for me, but to the prophet's message. मेरे लिए नहीं बल्कि नबी के संदेश के लिए आमीन कहिए। Believe the prophet's message. परमेश्वर नबी के इस We have to संदेश पे believe what विश्वास he has करिए। said. हमें विश्वास करना है कि उन्होंने जो भी कहा उस पर विश्वास करना है। Hallelujah. हालेलुया। And when Brother Branham is saying we believe that we are living in the last days, और जब भाई ब्रनाम कहते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, in the shadow of his coming, उसके आने के उस प्रतिछाया में, and that's what these messages are directed to. और यही वो सारे संदेश
उसको उसको निर्देश करता है। It's for the people to take heed, take warning. और ये समय है कि लोग इस चेतावनी को ले लें। Amen. Amen. Take this as a warning. इसको एक चेतावनी ले लीजिए। Hallelujah. Hallelujah. That there's an oncoming storm. कि एक आंधी आ रही है। Hallelujah. Hallelujah. There's an oncoming storm. कि एक आंधी आ रही है। And if you hear it on the radio, यदि आप उसको रेडियो में सुने, if you hear it on the news, यदि आप उसको न्यूज़ में what सुने, we'll do, तो आप क्या करेंगे? we will run to the place of safety. हम सुरक्षा के स्थान पर भागते हैं। But the oncoming storm, it's not coming, but it's already have arrived. परंतु आने वाली आंधी आने वाली नहीं है, बल्कि वो आ चुकी है। Brother Branham preached oncoming storm. भाई ब्रनाम ने प्रचार किया But आने the वाली storm आंधी, is already reached here. परंतु आंधी आज यहाँ पहुंच Let's run चुकी to है। the place of safety. आइए हम सुरक्षा के स्थान पर दौड़े, Hallelujah. Because there is a way of escape. क्योंकि वहां पर एक मार्ग है भागने छुटकारे का। We are seeing the red flashing light of his judgment. हम उसके देखे उस लाल बत्ती को हम देख रहे जो उसके आने के पहले चमकती है। Amen. The red flashing lights. वो लाल बत्ती जो जलती है। Whenever you read the news, जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं, just 3-4 years ago, then the war was started between Russia and Ukraine. और 3-4 साल पहले करीब जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर Then शुरुआत the war हुई। started between Israel and Philistine. फिलिस्ती और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू And हुआ। now we can see the situation, the war-like situation in our country. और आज हम युद्ध की परिस्थिति हमारे देश में भी देखते When we हैं। see these events that are unfolding, जब हम इस घटना को होते हुए देखते हैं, it's the flashing red light of his coming. ये वो लाल बत्ती है जो जल रही है उनके आगमन के So when we पहले। see the red lights, जब हम इस लाल बत्तियों को देखते हैं, we shouldn't be enjoying and taking leisure time and going on vacation. कि ये वो हमारा समय नहीं कि हम आनंद मनाए या छुट्टियों में जाए। ये समय नहीं है कि हम आनंद मनाएं. This is not the time to go on vacation ये समय नहीं है कि हम छुट्टियों में जाए and enjoy the leisure time. और अच्छा एक समय को आनंद ले। This is the emergency time. ये आपातकाली का समय है। It's a time to have a conference, ये समय है कि हम सम्मेलन to में come आए, to have a get together. कि हम एकत्रित होके आ जाए। Hallelujah. Take warning और आप इसका चेतावनी and लीजिए run to the place of safety, और अपने सुरक्षा के स्थान which पर is the जाइए, message of the hour. जो इस घड़ी का संदेश है। Hallelujah. हालेलुया। And many tonight we just pull the shell right now, और हम में से बहुत है जो शेल को हटा देते हैं आज lay it over on the side of the bench और उसको एक बेंच के किनारे पर रख देते हैं and say, और कहते हैं, Lord God, प्रभु परमेश्वर, I am receptacle to you. मैं आपके लिए देके समर्पित करता हूँ Let your spirit search through me, और आपकी आत्मा मेरे अंदर होने दो, mold me, मुझे आकार and दीजिए make me after thy will. और आपकी इच्छा के अनुसार बनाइए। I yield my heart. मैं अपने हृदय को समर्पण करता हूँ। Are you ready to yield your heart to him? क्या आप तैयार हैं अपने हृदय को समर्पण करने? And don't bite your nails. अपने नखूनों Sitting को मत here. काटिए यहाँ बैठकर। I want your attention here. मैं आपका ध्यान यहाँ चाहता हूँ। Are you ready to yield your heart to him? क्या आप तैयार हैं अपने हृदय को समर्पण करने? Many times when we ask about giving to God, और जब कितनी बार भी हमने जब पूछा परमेश्वर को समर्पण करने, if the church asks some love offering, we might give money to God. और कभी कलीसिया लव ऑफरिंग मांगते तो हम तो पैसा देते हैं परमेश्वर के लिए। Sometimes we also give our talents in singing and playing music. और कुछ समय हम अपना गीत गाने में या जो सारे वस्तुओं में इंस्ट्रूमेंट बजाने में रखते हैं। Sometimes in service, like helping each other. और कुछ सभाओं में एक दूसरे को मदद करने में करते हैं। But that's okay. वो सब ठीक है, But more than that, God wants your heart. परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर आपका हृदय चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। He wants your heart. वो आपका Hallelujah. हृदय चाहता है। Hear us, O Lord. वो परमेश्वर हमारी सुने। We are here for one solemn, sacred, holy purpose. हम एक ही जो है उस पवित्र उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं। Amen. That is, वो है draw nigh unto God, कि परमेश्वर के निकट आओ, knowing that He has promised, कि ये जानकर कि उसने प्रतिज्ञा की है if we draw nigh to Him, कि यदि तुम उसके निकट आओ He will draw nigh unto तो वो us. तुम्हारे निकट आता है। And that's why we are here. और इसी कारण आज हम यहाँ हैं। That's why we are here. इस कारण आज हम यहाँ हैं। That's why we are here. इस कारण आज हम यहाँ पर हैं, To draw nigh unto God. ताकि हम परमेश्वर के निकट जा सके। Hallelujah. हालेलुया। You know, in Bible there's a very nice example of Daniel. आपको पता है बाइबल में बहुत अच्छा एक उदाहरण है दानियल का। Amen. आमीन। That's the first thing I ask, how many of you are from message believing churches? इसलिए मैं आपसे पहले ही पूछा कि कितने आप में से है जो मैसेज Almost everyone attending message believing churches. और लगभग आप में से सब है जो संदेश के विश्वासियों के कलीसिया But let's see about Daniel. परंतु यहाँ दानियल के विषय में देखेंगे What Brother Branham says about him. कि भाई ब्रैनम उसके बारे में क्या कहते हैं। I want you to notice how Daniel, मैं आपको इस पे ध्यान देना चाहता हूँ कि कैसे दानियल yet an alien, की एक अजनबी
yet ousted from his people, अपने लोगों से जो बाहर किया गया, ousted from his church, अपने कलीसिया से जो बाहर किया गया, without one church service, बिना एक सभा, एक कलीसिया के सभा के, without any church to go to, बिना ऐसा एक कलीसिया जहां वो जा सके, without any hymns to sing, बिना कोई गीत वो गा सके, but what he sang to himself. परंतु उसने अपने में बीच में वो क्या गीत गाया, But in the midst of all of this, परंतु इन सब के मध्य में still held on to what that prophet said. वो उसी पर बना रहा जो भविष्यद्वक्ता ने कहा। Hallelujah. हालेलुया। Here prophet Daniel यहाँ पर नबी डैनियल is reading prophet Jeremiah's book वो यिर्मयाह नबी का पुस्तक पढ़ता and है holding on to what the prophet said. और उसी पे बना रहा जो नबी ने कहा। One prophet reading another prophet's एक book. भविष्यद्वक्ता दूसरे भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ता But है। we see in the message believing churches people have problem reading message books. और आज हम संदेश के कलीसियाओं में क्या देखते हैं कि संदेश पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। Amen. There's one prophet reading another prophet's book. परंतु यहाँ एक भविष्यद्वक्ता दूसरे भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ता है। Daniel didn't read Bible. दानियल ने कोई बाइबल नहीं पढ़ा। There was no Bible in that days. उन दिनों में बाइबल नहीं था। There was only scrolls. वहां पर सिर्फ स्क्रोल्स थे। And in the book of Daniel, he says, I, Daniel, understood by the reading of the book of Jeremiah. और दानियल के पुस्तक में वो खुद कहता है कि मैं दानियल इस यिर्मयाह के पुस्तक को पढ़कर यह समझता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. If Daniel could read Jeremiah's book यदि दानियल यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ सकता है and could understand और उसको समझ सकता है that the days have come close, तो समय जो है अंत आ चुका है that they will go back to their own country. कि वो अपने देश में फिर से लौट सके। Amen. And he hold on to what the prophet said. और वो उसी पर बना रहा जो उस भविष्यद्वक्ता ने कहा। If he could hold on to what the prophet said, यदि वो उसको पकड़े रह सका जो उस भविष्यद्वक्ता ने कहा, how much more important it is for us to hold on to what our prophet has तो ये said. कितना अधिक बहुमूल्य होगा कि हम हमारे भविष्यद्वक्ता को वचन पर बने रहें। Hallelujah. हालेलुया। Because we believe in the message of the hour, क्योंकि हम इस घड़ी के संदेश पर विश्वास message करते of हैं। this age. इस युग का संदेश That's the revealed word of the hour. वो इस घड़ी का प्रकट किया गया संदेश है। Hallelujah. Amen. No church to go. ना कलीसिया उसके पास जाने के लिए। Daniel didn't have any church. दानियल के पास कोई कलीसिया नहीं था। Nobody to fellowship. वो कोई नहीं था जिसके साथ संगति कर सके। Everybody went to heathen temples. हर एक जन छुपे हुए इस मंदिर में गए, अन्य जाति मंदिरों अन्य में. जाति मंदिरों में, Heathen temples. अन्य जाति मंदिरों में, Everybody worshipped their idols. और हर एक जन ने मूर्ति पूजा वहां पर की। Oh, we'll be very happy, brother. We are not worshipping any idol. और आप कहेंगे हम तो खुश है भाई कि हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। There's no idol in our houses. हमारे घर पे कोई मूर्ति नहीं, There's no idol in our churches. हमारे कलीसिया में कोई मूर्ति नहीं। But believe me, परंतु मुझ पे विश्वास if you करना, give any priority more than the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन से अधिक महत्वता किसी भी चीज को देते हैं, if your job become more important than the word of God, यदि आपका काम परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा अधिक बहुमूल्य है आपके लिए, if your love for the sports become more important than the love of God, sports, यदि आप स्पोर्ट्स के लिए आपका प्रेम परमेश्वर के वचन से भी अधिक हो जाता है, or your friends become more important than the word of God, या आपके दोस्त मित्र आपके लिए परमेश्वर के वचन से भी अधिक हो जाते हैं, believe me, that has become an idol in your heart. तो विश्वास करिए वो आपके लिए एक मूर्ति पूजा बन चुका है, आपके हृदय में मूर्ति बन चुका है। So in 3 days we will see that we will break all the idols. कि हम इस दिन में ये देखेंगे कि हर एक मूर्ति को हम तोड़ेंगे That's in the hearts. जो हमारे हृदय में है। Hallelujah. हालेलुया। So he didn't have any church to go. तो उसके पास दानियल के पास कोई कलीसिया नहीं थी जाने के लिए, Nobody believed the same thing that he did. और किसी ने भी विश्वास नहीं किया जो दानियल जिस पे विश्वास करता था। But in 68 years, परंतु 68 इयर्स में from a young man about 12 or 14 years, और जो एक जवान व्यक्ति था जो 12 या 14 साल का था, he was taken down there. वो वहां पर ले जाया गया He held true to God और वो सच्चे परमेश्वर पर सच्चा रहा, वहां पर बना रहा, and understood by Jeremiah's prophet और यिर्मयाह नबी के संदेश पर वो बना रहा, समझा उसे that the days were almost accomplished. कि लगभग वो दिन करीब आ चुके थे। If we can understand by reading Jeremiah's book यदि वो यिर्मयाह नबी के पुस्तक को पढ़कर समझ सकता that the है, day of going home is so close, यानी घर जाने का दिन इतना करीब आ चुका है, and just now we read, Brother Branham said that we are living in the shadows of his coming. और हमने अभी देखा कि भाई ब्रनम कहते हैं कि हम परमेश्वर के आने के उस छाया में ही जी रहे हैं। Can we say we are almost home? क्या हम भी कह सकते हैं हम लगभग हमारे घर जा रहे हैं? The milestone showed from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milestones. कि माइलस्टोन वहां पर दिखा गया 1, 2, 3, 7 तक दिखाए गए, But after 7 there is no 8. परंतु 7 के बाद वहां पर 8 नहीं था, After 7 it's 0. और 7 के बाद वापस 0। There's no churches. वहां पर कोई कलीसिया काल We नहीं, are almost home. हम वापस घर लौट रहे Hallelujah. हैं। I understood by the books
कि उसने पुस्तकों के द्वारा समझा that Jeremiah, my brother, many years ago prophesied कि यिर्मयाह मेरा भाई कई सालों पहले ये भविष्यवाणी की that Israel would stay here for 70 years. कि इज़राइल यहाँ पर 70 साल के लिए रहेंगे And that time is about fulfilled. और वो साल लगभग अब पूरा होने वाला है And there's only 2 years are left. और सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। So when he understood by reading of the prophet's book, तो वो जब नबी के संदेश को पढ़कर वो समझ सका, he didn't sit in the church. वो कोई कलीसिया में नहीं बैठा, He didn't continue working. वो काम करता, वो लगातार अपना काम नहीं किया, But what he did, परंतु उसने क्या किया? Brother Branham says he made himself ready. भाई ब्रनम कहते हैं उसने अपने आप को तैयार कर लिया। Hallelujah. हालेलुया। And he called a fast. और उसने उपवास की And he sanctified और himself. उसने अपने आप को शुद्ध किया And he sat with ashes and sackcloth. और उसने देख एशेस और सैकक्लॉथ से उसने खुद को किया, राख से, And put it upon his head. और अपने सिर पर लगा दिया And went to fasting and praying और उपवास और प्रार्थना करने लगा to understand कि समझ सके about what day they were living कि in. वो किस में वो जी रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। We could only understand what day we are living in और हम भी कैसे समझ पाए कि हम कौन से दिन जी रहे हैं? by reading prophet's message. नबी के संदेश के पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। So when we understand we are in the end time, और कब हम समझ पाए कि हम अंतिम समय में हैं? so if we are in end time, what we will be doing? तो आप यदि अंतिम समय में तो आप क्या करते We'll होंगे? prepare ourselves. हम अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। Hallelujah. हालेलुया। We'll prepare ourselves. हम अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। Amen. When it's emergency, और जब आपातकालीन स्थिति आए, we don't go on holiday and vacationing and go on leisure time. हम ऐसे वेकेशन मनाते हुए या आनंद मनाते हुए कहीं घूमने नहीं जाएंगे। You know, when there was a pandemic, आपको पता है जब एक पैंडेमिक हुआ था, the doctors were on duty. वो डॉक्टर्स अपने काम कर रहे थे, They didn't have any holidays. Their holidays were cancelled. उनका कोई छुट्टी नहीं था, उनके छुट्टी सारे कैंसिल They किए were गए। working overshift वो और भी एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे थे because there was an emergency. There was a pandemic. क्योंकि वहां पर एक आपातकालीन परिस्थिति, एक पैंडेमिक आया And their profession, they were doctors. और वो एक डॉक्टर्स थे And they had to save lives. और उनको जान बचाने थे। Amen. If the worldly profession teaches them that when there's an emergency, they have to be at the work, कि जब इस दुनिया की बातें आपको ये बात सिखाती है कि एक आपातकालीन परिस्थिति में आपको अधिक समय काम करना है, amen. Amen. We as the children of God, तो हम परमेश्वर के बच्चे, we as ministers of God, हम परमेश्वर के जो मिनिस्टर्स के we know बच्चे, this is a time of emergency. हम जानते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति है। We are not made to sit at home and have a leisure time. हम इस घर में बैठ के एक अच्छा समय बिताने के लिए नहीं But we आए, should be on the field, परंतु हमें अब उस स्थान पर उतरना preaching the है, gospel सुसमाचार को प्रचार करना that है Jesus saves. कि परमेश्वर बचाता है। Hallelujah. हालेलुया। He's still in the business. He's saving people. वो अभी भी अपने लोगों को बचाता है, He saves you and me. वो आपको और हमें बचाता है। Hallelujah. हालेलुया। When we think about the scriptures, और जब हम इस वचन के बारे में सोचते हैं, when we put our mind on the word of जब God, हम परमेश्वर के वचन, अपने उस वचन को परमेश्वर के मनों में रखते हैं, when we think on the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाते हैं, then He Himself manifests on us. तब वो अपने आप को हम पर प्रकट करता When है। we think on Him, जब हम उनके बारे में भी सोचते हैं, when we bring our thoughts centered on Him, जब हमारे विचार उनके बारे में रहता है, then He reveals Himself to us. तो वो अपने आप को हम पर प्रकट करता है। Hallelujah. हालेलुया। One more example, एक और उदाहरण and then maybe I'll close. और उसके बाद हो सकता है मैं समाप्त करूं। I can still see faces are lost in thoughts. मैं अभी भी ऐसे चेहरों को देख सकता हूं जो अपने ख्यालों में खो चुके I'm हैं। sorry, you might hate me for this, but I mean, I'm not just doing formality that I have to stand 1.5 or 1 hour and complete my sermon and go and sit. No, I'm not coming here. For like, मुझे क्षमा मत करना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ कि ऐसे आपके लिए 1.5 घंटा प्रचार करूँ और फिर जाकर बैठ जाओ। still I can see young thoughts, lost in thoughts, young minds. मैं अभी भी ऐसे जवान मनों को देख सकता हूँ जो अपने ही विचारों में खो गए हैं। Please, कृपया करके I'm requesting you. मैं आपसे विनती करता We हूँ, are pleading you. हम आपसे विनती करते हैं। This is for our souls. ये हमारे प्राणों के विषय में है। Amen. आमीन। We're requesting you. Amen. हम आपसे विनती करते हैं Just 1.5 hour or 2 hours that we are spending in the presence of God. कि ये 1.5-2 घंटे जो भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं। I know you might be feeling hot because you might have ACs at home. मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ गर्मी लग रही है क्योंकि आप घर पे एसी में रहते होंगे, But believe me, this heat is nothing as compared to that heat. परंतु आप मुझे विश्वास करो कि ये गर्मी कुछ नहीं है उस गर्मी के समान। This is nothing. ये कुछ भी नहीं है। I was in Gujarat and it was 43 degrees. और जब मैं गुजरात में था वहां पर 43 डिग्री था, But still I think that's nothing. परंतु मैं फिर भी सोचता हूँ कि वो भी कुछ भी नहीं है। And we had fellowship from 10 to 3. और हम उसमें 10 Morning से 10 to 3. सुबह के 10 से दोपहर के 3 बजे तक हम सभा रखे, Because the heat over there in the hell. क्योंकि वहां पर अधोलोक में जो गर्मी है, Amen. It's a fact.
ये सच्चाई है। It's nothing a fairy tale that we are listening to. ये कोई कहानी नहीं है जिसको हम सुन रहे हैं। The Lord took the prophet in the hell. परमेश्वर ने नबी को अधोलोक He में भी ले showed the गए। evil spirits there. उसने वहां पर बुरे आत्माओं को And he दिखाया also took prophet in heaven. और वो स्वर्ग पर भी अपने नबी को And I लेकर गए। like that statement that the Lord told him. और मैं उस स्टेटमेंट जो बयान उन्होंने किया उसको मैं जब Those who सोचता हूँ, love you जो कोई तुझसे प्रेम and करता all है those who love and all those you love, और जिनका इसे तू प्रेम करता है they all will be वो there. सब वहां रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I want to ask you, how many of you love Brother Branham? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Hallelujah. आप में से कितने हैं Can जो we भाई say ब्रैनम he से is प्रेम my करते हैं? prophet? कि आप कह सकते हैं कि वो मेरा नबी है, He is our prophet. वो हमारा नबी है, I love him. मैं उससे प्रेम करता हूँ। We are here because he was on the earth. हम यहाँ पर है क्योंकि वो वहां पर थे उस I समय। believe what he said. और मैं विश्वास करता हूँ उन्होंने जो कहा, I am not of that thinking that we only have to take what thus said the Lord was. कि मैं यही सिर्फ सोचता हूँ कि परमेश्वर यूं कहता है सिर्फ उतने को ही ना ले, Still there's a thinking in the message. कि हम Still there's a thinking in the message believing churches. कि वो अभी भी यही सोचते हैं कि संदेश के विश्वासियों के No, कलीसिया में just take what Brother Branham said, thus said the Lord, and leave the rest. कि भाई ब्रैनम ने जो परमेश्वर यूं कहता है उसी को लेना, बाकी सब छोड़ देना। All the 1200 messages is thus said the Lord for us. वो 1200 संदेश जो है वो सब कुछ परमेश्वर यूं You कहता है cannot हमारे say लिए। take one and leave the one. आप ये नहीं कह सकते एक लेंगे और दूसरा छोड़ देंगे। Some have thinking, no, let's take after 1962 to 65. और कुछ लोगों का ये विचार है कि Because 1963 the से seals 65 was तक ले, open, the mysteries were revealed. क्योंकि मोहरें खोली गई, भेदें प्रकट की गई, And before the prophet made mistakes. और उसके पहले नबियों ने नबी ने गलती No, की, all the message, परंतु नहीं सारे the संदेश, entirety of the message आपको सारा is संदेश thus said the Lord for वो us. परमेश्वर यूं कहता है हमारे लिए। Hallelujah. हालेलुया। Because it was God in a man. क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य के अंदर Because था। Brother Branham taught us enmorphe. The concept of the word enmorphe. क्योंकि भाई ब्रैनम ने एमॉर्फी हमें उसका कंसेप्ट समझा है That he only changes his mask. कि वो अपने से मास्क को बदलता है। He was Jehovah. वो यहोवा था, He changed his mask and he became Jesus. उसने अपने मास्क को बदला और यीशु बन गया, Then from Jesus he changed his mask और यीशु से अपने मास्क को बदल and he दिया became the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा बन गया, And he was in the church ages. और वो कलीसिया युगों में था, And in the last church age, और इस आखिरी कलीसिया काल में, the last time, इस अंतिम समय again he changed his marks फिर से उसने अपना मास्क को बदला and he became a son of man. और वो मनुष्य का पुत्र बना। Hallelujah. हालेलुया। In a prophet's body. वो नबी के शरीर में, देह में, Hallelujah. हालेलुया, He was manifest in the flesh. वो देह में प्रकट हुआ, Because before the burning of Sodom and Gomorrah, क्योंकि सोदोम गोमोरा के जलने के पहले Elohim was manifested in the flesh. एलोहिम वहां पर शारीरिक रूप में प्रकट हुआ। Hallelujah. हालेलुया। And Elohim visited Abraham. और एलोहिम ने जाके अब्राहम से भेंट की, Abraham, which had 7 letters in his name. और अब्राहम जिसके 7 अक्षर थे उसके नाम After में, Abraham, there was no prophet with having Ham in the end. और अब्राहम के बाद कोई भी ऐसा नबी नहीं था जिसके नाम में हाम था। That's what Brother Branham says. यही भाई ब्रैनम कहते हैं। But we are very happy परंतु हम बहुत खुश हैं that in the end, कि आखिर में the 7th church age, कि 7 कलीसिया कालों there के was a prophet कि वहां पर एक नबी था, whose name ended with Ham. उसका नाम हाम से खत्म हुआ, There were 7 names. कि वहां पर 7 अक्षर थे। Hallelujah. हालेलुया। And again the Elohim manifested in flesh. और फिर से एलोहिम अपने आप को एक शारीरिक रूप में प्रकट किया, Because there was a burning of Sodom and Gomorrah. क्योंकि वहां पर एक सोदोम गोमोरा जलाया And जाना है, before the burning, और जलाए जाने के पहले the Lord visited us. परमेश्वर ने हमसे भेंट की। Hallelujah. हालेलुया। When we think of the scriptures, जब हम इस वचनों के बारे में विचार करते हैं, amen, that's the reason the prophet's message that thus said the Lord for us. इसलिए हम कहते हैं कि नबी का संदेश हमारे लिए परमेश्वर And यूं we कहता love है, our prophet. और हम हमारे नबी से प्रेम करते हैं। Amen. And we believe he is in his, I guess, his youth. और मैं विश्वास करता नबी अपने जवान में है, अपनी जवानी के Amen. Hallelujah. दिन। Amen. And we'll meet him. और हम उनसे मुलाकात करेंगे। When we think on the scriptures, और जब हम इस वचन पे सोचते हैं, Brother Branham says in Jehovah of Miracles in this message, और भाई ब्रैनम इस संदेश में जेहोवा ऑफ मिरेकल्स इस संदेश में कहते हैं, Mary was thinking on the scripture. मरियम भी उस वचन पर अध्ययन कर रही थी, And as she was thinking on the और scripture, जैसे उस वचन के बारे में सोच रही थी, the scripture which was prophesied by Isaiah, और वो जो वचन जो यशाया नबी के द्वारा कहा गया that unto us a child is born, कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, unto us a son is given,
और हमें एक पुत्र दिया गया है and his name shall be called the Counselor, और प्रभुता उसके खंधे पर होगी the Prince of Peace, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, the Mighty God, पराक्रमी परमेश्वर, and the Everlasting Father. अनंत काल का पिता. Hallelujah. हालेलुया. She became so interested in those और scriptures. वो इतनी उसमें इंटरेस्टेड, मतलब इतना उसका ध्यान उस पर लग चुका था. Hallelujah. हालेलुया. She had gone to do her daily chores. और वो अपने रोज के काम को वो करने गई. Brother Branham says maybe it was the Monday morning. और भाई ब्रह्म कह सकते हो सकता है सोमवार की सुबह के समय हो. It was a wash day. एक धोने जाने वाला दिन हो. And she had to get the water early. और उसको सवेरे जाकर वो पानी निकालना हो. And her mother was old. और उसकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी थी. But in midst of all this work, परंतु इन सारे कामों के बीच में she becomes so interested in what she was saying or thinking. और उसकी दिलचस्पी इतना उस जो सोच रही थी, जो उसने पढ़ा, उस पर इतना दिलचस्पी बन गया That she almost forgot to turn the corner. Almost forgot to turn the corner. और लगभग वो एक कोने में मुड़ना ही भूल गई वो. And she went straight ahead. और वो सीधा चली गई. Hallelujah. हालेलुया. When we think on the scriptures, और जब हम वचन के बारे में सोचते हैं, amen, आमेन, he comes and he visits us. वो हमसे आकर भेंट करता है. Hallelujah. हालेलुया. But Brother Branham says, परंतु भाई ब्रनम कहते हैं it's too bad that the church today doesn't walk in the spirit like how we used to walk. कि ये कितना बुरा है कि आज कलीसिया उस आत्मा में नहीं चल सकती जैसा वो चला करते थे. For it's that kind of a time that when God comes to you, कि ये ऐसा एक समय ऐसा प्रकार का एक समय है कि परमेश्वर आपके पास आता है. hallelujah. हालेलुया. Didn't Jesus say that where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst? क्या यीशु ने ये नहीं कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से हो, मैं उनके बीच में हूँ? Do you believe that word? क्या आप उस वचन पे विश्वास करते हैं? Because God's law is his word. क्योंकि Law. परमेश्वर की व्यवस्था उनकी वचन है. You know, there's Newton's law, आपको पता है न्यूटन्स लॉ है, there's gravitation law, ग्रेविटेशन लॉ है, and scientists work according to the law, और साइंटिस्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, and they get a result. और उनको उसका परिणाम But मिलता Brother है. Branham preached about God's law in the message, the restoration of the bright tree. कि देखिए, और नबी रिस्टोरेशन ऑफ ब्राइट ट्री उस संदेश में परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में कहते हैं That God's word is his law. कि परमेश्वर का वचन ही उनकी व्यवस्था है. Amen. So do we believe that when 2 or 3 are gathered in his name, he is in our midst? क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ. Jesus Christ is here present. परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है. If we could be conscious of that, यदि हम उसके बारे में होश में ना आए, if we could be conscious of that, और अगर हम उस विषय में होश में आए, that's why when we are present in the church, इसलिए जब आप कलीसिया में मौजूद होते हैं, if you want to feel his presence, यदि आपको उनकी उपस्थिति महसूस करना prophet है, says, be conscious of his presence. नबी कहते हैं कि उनकी उपस्थिति के बारे में आप होश में रहिए. And not only here, सिर्फ यही नहीं, but when you are walking down the street, परंतु जब आप सड़कों पर चलते हैं, wherever you are, जहां कहीं आप हो, you that profess to be believers जो आप खुद को विश्वासी कहलाते हैं and fear the Lord, और परमेश्वर का भय मानते हैं, remember, याद रखना, the angels of God are moving with you. परमेश्वर के दूत आपके इर्द गिर्द आपके साथ चलते हैं. Hallelujah. हालेलुया. But we want the angels of God when we are in danger. हम तो सिर्फ परमेश्वर की दूत तभी जाते हैं जब हम मुसीबत में हो. But when we are in happy mood, परंतु जब हम खुशी के मन में होते हैं, when we are shopping, जब हम शॉपिंग करते हैं, when we are with friends and we didn't tell our parents that we are roaming with friends, और जब हम कहते हैं अपने माता पिता से कि हम दोस्त के साथ घूम रहे हैं, that time we forgot to think that the angels are still watching us. लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने दूत को भेजता है हमारे लिए देखने के Or लिए. maybe you told your parents that I'm going to work, और हो सकता है आप अपने माँ बाप से कहे रहेंगे कि मैं काम करने जा रहा and हूँ, then all of a sudden there was a picnic trip, और अचानक बीच में एक पिकनिक ट्रिप बन जाता and है, you felt that if I tell at home, और आप सोचेंगे यदि मैं इसको घर पे बताऊं, they will say upfrontly, they will say no. और वो बिल्कुल यही कहेंगे कि तुम मत जाओ. So it's better I'll say that I'm going to work and I'll go for the trip. तो ये अच्छा होगा कि मैं घर पे कह दूं कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, परंतु मैं घूमने जाऊंगा. That's why Brother Branham says, you that profess to be believers और इसके लिए कहते हैं कि तुम जो खुद को विश्वासी कहलाते हैं, and fear the Lord, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, not fear only your parents, अपने माता पिता का भय नहीं, not fear only your pastors सिर्फ अपने फास्टर का भय नहीं मानना, or your strict deacons, या अपने डीकन्स का, but those who fear the Lord. परंतु जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, Remember, the angels of God are moving with you. आप स्मरण करना कि परमेश्वर का दूत आपके बीच में वो घूमता है, फिरता Hallelujah. है. Wherever you are, जहाँ कहीं आप हो, they're watching everything you do. वो हर एक चीज पर ध्यान लगाता है जो आप करते हैं. Every thought that goes through your mind, हर
हर विचार जो आपके मन में घूमता है, They know all about you. वो आपके बारे में सब जानते हैं। Therefore, we must be conscious of that. इसलिए हमें उसके बारे में होश में रहना है। Amen. Amen। If you are not conscious, यदि आप उसके बारे में होश में ना then you रहे, act anyway. तो आप जैसा चाहे वैसा वर्ताव करो। That's the reason. यही कारण है। If you are not conscious, यदि आप होश में ना हो, you will get 10 times and visit the washroom. तो आप 10 बार वॉशरूम जाएंगे। You feel like eating a mouth freshener. आप यहाँ बैठे बैठे माउथ फ्रेशनर खाने का आपको मन You करेगा, feel like I'm feeling hot, I need a fan. और आप सोचते रहेंगे यहाँ बैठ के कि मुझे हैंड फैन की जरूरत रहेगी। Or you are sitting here, or your mind must be thinking that how many messages I must have received on my social media apps. और आप यहाँ बैठकर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे सोशल मीडिया पे इतनी देर में कितने मैसेज आए होंगे। But the prophet says every thought that goes through your mind, परंतु नबी यहाँ कहते हैं कि जितने भी बार वो आपके मनों में जाता है, don't get angry with me when we are talking, all the preachers, we talk about social media apps and all. तो आप इस बात से गुस्सा मत होना कि हर बार हम और सारे सेवक Because सोशल मीडिया पे इस now- विषय पे कहते हैं, Because we don't have a TV now to preach about. क्योंकि हमारे पास अब टीवी नहीं है जिस पर हम प्रचार करें। You all have taken out of your homes. आपने उसको अपने घर से निकाल दिए हैं। So that's the reason Brother Branham says we know the enemy by his attacks. इसलिए नबी कहते हैं भाई ब्रनाम कि हम अपने दुश्मन को उसके मारने के तरीके पर, यानी उसके अटैक्स जो मारता है उसके द्वारा हम उसको जानते हैं। We know the enemy by his attacks. उसके हमला के द्वारा हम जानते हैं कि वो कौन है। So we know now the enemy is coming in televisions anymore to scare you. इसलिए हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन अब वो टीवी के द्वारा नहीं आ रहा हमसे लड़ने, But he's in social media apps. परंतु वो सोशल मीडिया एप्स में है। That's the reason. If a social media apps in years before there were a girl used to get so many likes और इसलिए देखिए सोशल मीडिया ऐप में देखिए कई साल पहले अगर लड़कियों को ज्यादा लाइक मिलता था, on Instagram reels or maybe on Facebook, हो सकता है इंस्टाग्राम रील या फेसबुक पर, and she was so happy. और वो इतनी खुश होती, All of a sudden after many years, और अचानक कई साल बाद same girl, वही लड़की, same nice pictures वही अच्छे तस्वीर, which are edited in a photo editing app. और वो एडिट किए गए कोई फोटो एडिटिंग I ऐप know में। even if you are not beautiful, but the apps are making us look beautiful. हाँ, हो सकता है अगर आप खूबसूरत भी ना हो परंतु ऐप आपको खूबसूरत दिखाता है। Not only the apps, but there are coming some phones like Vivo phones that will make you look beautiful. सिर्फ ऐप ही नहीं बल्कि ऐसे फोन्स भी आते हैं जो आपको खूबसूरत दिखाता है। Amen. Because that's the reason Brother Branham exposed Satan beforehand. इसलिए भाई ब्रनम ने उसको पहले ही पर्दाफाश किया शैतान Beauty को, is sin. कि सुंदरता वो ब्यूटी एक पाप है। Hallelujah. हालेलुया। So when we know that that's the reason we are preaching about this. इस कारण हम इस विषय पे हम प्रचार करते हैं, Because we know that the Satan is coming through these ways. क्योंकि हम जानते हैं शैतान ऐसे तरीकों में आता है। And that's the reason everybody who takes selfie and upload it on their statuses, इसलिए जो कोई जो सेल्फी लेकर स्टेटस पे अपलोड करता है, everybody in their own selfies, in their own eyes are beautiful, smart, handsome. इसलिए हर कोई अपने लिए अपने सेल्फी में वो सुंदर और हैंडसम ही दिखता है। Correct me if I'm wrong. मुझे गलत है तो मुझे बताना आप। If I take selfie, I'll be, oh, I'm the handsome person in my selfie. और यदि मैं सेल्फी निकालूं तो मेरे सेल्फी में मैं ही खूबसूरत लगूंगा खुद Even को। if we take a group picture, और हो सकता है हम ग्रुप पिक्चर भी ले, we are not bothered about others, but we'll see where I am. हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि बाकी कहाँ पे, परंतु हम ये देखेंगे कि हम कैसे दिख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। If we are so conscious about how we look, आप इतने इस चीज के बारे में आप सोचते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। believe me, what this world calls Generation Z, Generation Z, Gen Z, तो इसलिए जब आप सोचते हैं कि संसार जेनजी के बारे में जो कहता they है, are so conscious of how they look online. और वो इस बारे में सोचते हैं कि ऑनलाइन वो कैसे दिखाई पड़ते हैं। Yes, that's the reason on status, on your Facebook, on your DP, everything you post the best picture. इसलिए आप चाहे आप स्टेटस पे लगाए या अपना डीपी पे लगाए या कहीं पोस्ट करें, आप अपने सबसे उत्तम चीज को ही डालते The हैं, best picture you put. सबसे उत्तम तस्वीर जो आप डालते हैं। But it doesn't matter how you look online. परंतु ये परवाह करता कि आप ऑनलाइन कैसे दिखाई पड़े, But it does matter how you look in his eyes. परंतु ये जरूर परवाह है कि आप उनके नजरों में कैसे दिखते That's why हैं। don't try to please the world. इसलिए आप संसार को आप खुश करने की कोशिश मत No, करो। don't go with the flow of this world. आप इस दुनिया के भाव के उसमें मत चले We जाना। have the law of God in us. हमारे अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है, That's the reason we will go against the flow. इसलिए हम इस भाव के उसके विरुद्ध दिशा में जाएंगे. विरुद्ध दिशा में हम जाएंगे। Hallelujah. Amen। So we have to be conscious of the presence of the Lord. इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हमें ध्यान देना है, We are होश में thinking रहना है। about everything else but Him. हम सब बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा हम सब चीजों के बारे में सोचते हैं। That's the trouble with the world today. यही समस्या है आज के That we संसार are का, thinking about everything else but Him. कि हम सब चीजों के बारे में तो सोचते हैं परंतु उनके बारे में
But think on him. परंतु आप उनके बारे में विचार करिए Draw nigh unto me, और मेरे निकट आओ and I will draw nigh unto और you, मैं तुम्हारे निकट said the आऊंगा। Lord. प्रभु ने कहा Think upon him. और उसके बारे में सोचो। Are you ready to think upon him? क्या आप तैयार हैं उनके बारे में सोचने? Hallelujah. आमीन। Are you ready to meditate upon the word of the Lord? क्या आप तैयार हैं उनके वचन पर आप मेडिटेट कर सके? Are you ready to meditate upon the message of the hour? क्या आप इस घड़ी के संदेश पर मनन करने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। David spoke, hallelujah, दाऊद ने कहा to write his commandment on the bedpost कि उसके आज्ञा को बेड पोस्ट पर लिखने के and लिए meditate on them day and night. और दिन रात उस पर अध्ययन करने। That's what the church ought to do. वही कलीसिया को आज करना है। Would keep your heart tuned in वो आपको आपके हृदय को ट्यून करता है with God परमेश्वर से day and night. दिन और रात। Hallelujah. हालेलुया। Not only on Sundays, सिर्फ रविवार को नहीं, day and night. वो रात और दिन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. For it's then when he appears, कि ये तब है जब वो प्रकट होता है। when we think of him on day and night, जब हम उनके बारे में सोचे दिन और रात, then he appears. तब वो आपको प्रकट होता है। That's the reason Solomon said, इसलिए सुलेमान कहता है, as a man thinketh in his heart, जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में विचार करता so है, is he. वो वैसा ही होगा। As you think, जैसा आप सोचते हैं, so you'll become. वैसा ही आप बनते हैं। If you think on the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन के You- समय सोचते हैं उसके you'll be बारे the में, sons and daughters of तो God. आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Don't just wait till you go to church आप कलीसिया जाने तक रुको मत, or some convenient hours. या फिर ऐसा एक घड़ी के लिए If I get holiday, कि यदि मुझे छुट्टी मिले, if I get leave, यदि मुझे आज छुट्टी मिले, then I'll go. तभी मैं जाऊंगा। Don't put Jesus on the back seat. आप परमेश्वर को पीछे के कुर्सी पे मत बिठाइए। Just keep him on your mind all the time. इसको अपने मन में हर समय बना कर रखना। And I want to end with this question. और मुझे इस प्रश्न से खत्म करना है What is on your mind today? कि आज आपके मन में क्या है? What is on our mind? आज हमारे मन में क्या है? Is the sports on your mind? क्या आपके मन में स्पोर्ट्स है? Still we think that the message building churches, many churches, if there is a cricket final, they miss the church because there's a cricket final going on. और बहुत आज भी ऐसे बहुत से कलीसिया में ऐसा मैंने देखा है कि अगर क्रिकेट का फाइनल हो तो वो चर्च को मिस कर देते हैं फाइनल देखने के लिए। Come on, what is on our mind? कि आज क्या है हमारे मन में? The sports, क्या ये स्पोर्ट्स, job, क्या काम, education, क्या पढ़ाई, or friendship with the world? क्या इस संसार के साथ दोस्ती? What's on your mind? आज आपके मन में क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Mary's mind, there was a scripture on her mind. मरियम के मन में वो वचन था परमेश्वर का। And as she went on walking down the street, और जैसे वो सड़कों पर चलती रही, all of a sudden, अचानक ही she began to realize that there was something around her. वो महसूस करने लगी कि उसके आसपास कुछ तो है। She began to realize a strange feeling. और वो एक अजीब सी महसूस करने लगी। Oh, that's the most wonderful वो experience. सबसे एक अद्भुत अनुभव है वो। Hallelujah. हालेलुया। I trust that everybody here has experienced them kind of a times. और नबी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ से हर एक जन ऐसा एक अनुभव कुछ ना कुछ एक समय पर आपने किया होगा। Amen. How many of you were in the last youth camp? आप में से कितने थे पिछले यूथ कैंप में? I myself have witnessed the time. Hallelujah. मैं खुद उस समय को I मैंने अनुभव किया। experienced the time. मैंने Hallelujah. उस समय को अनुभव Oh, किया it was a sweet fellowship. कि कितना एक अच्छा एक We संगति था। felt the presence of Holy Spirit. हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति Hallelujah. को महसूस किए। Amen. And Brother Branham says, I trust that everybody here has experience. और भाई ब्रनम भी यहाँ यही कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ हर एक ने उसको अनुभव किया है। If you haven't, यदि आपने नहीं किया, this would be a great morning to start. ये सही सुबह है उसको Hallelujah. शुरुआत करने का। I appeal to you all. मैं आपसे ये विनती रखता हूँ, If you haven't experienced, यदि आपने अब तक अनुभव नहीं किए, may this camp be a start for you. हो सकता है ये आपकी शुरुआत आज Don't सुबह बने। postpone for the next camp. इसको अगले कैंप के लिए मत रखना। Who knows next camp will be there or not? कौन जानता है अगला कैंप होगा या नहीं? Either camp will be there and we won't be there. हो सकता है कैंप तो होगा परंतु हम नहीं होंगे। Either of things might happen. कुछ भी हो सकता है इनमें से। Everything is uncertain. कुछ भी नहीं कह सकते हैं हम। That's why we take every moment seriously. इसलिए हम हर घड़ी को बहुत Every meeting seriously लेते हैं। seriously. हर मिनट सीरियसली लेते हैं। Every song seriously. हर सॉन्ग को सीरियसली Every लेते हैं। prayer seriously. हर एक प्रार्थना को सीरियसली लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Don't make prayer a formality. आप प्रार्थना को एक फॉर्मेलिटी मत बनाना। When we come to prayer, we pray in the same tone. कि हम जब भी प्रार्थना करना है तो एक ही तरीके में प्रार्थना करेंगे। Mostly it happens that with preachers, it happens when we call them for prayer, the tone changes. और बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रीचर बुलाते हैं
तब उनका जो है करने का तरीका प्रार्थना करने का बदल जाता है। We are praying, we are talking to God. हम प्रार्थना करें यानी हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। As I talk to you, talk to me. जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरे से बात करते Same thing हैं। is prayer with God. ऐसा ही परमेश्वर से प्रार्थना करना। There shouldn't be any formality. वहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी होने की जरूरत नहीं। You know, Brother Branham gave an example of a small boy. आपको पता है भाई ब्रनम एक छोटे लड़के का उदाहरण देते He हैं। lost his parents. उसने अपने माँ बाप को खो देता He है। didn't know how to pray to God. उसको नहीं पता परमेश्वर से कैसे He was प्रार्थना sitting in करना a church. है। वो कलीसिया में बैठा था And while praying, he just said A to Z alphabets. और प्रार्थना करते समय वो ए से जी तक वो उसने अल्फाबेट बताया And the priest was going from there. और वहां से एक प्रीस्ट वहां पर से गुजर रहा था And he said, boy, what you did? और उसने कहा बेटा तूने क्या किया? He said, I know how to pray to God. उसने कहा मुझे नहीं पता परमेश्वर से कैसे प्रार्थना But I करें, believed I said from A to Z परंतु मैंने ये सोचा कि अगर मैं ए टू जेड कहूँ that the God will put the letters and make sentence and will understand what I'm trying to say. और परमेश्वर वो अक्षरों को अपने स्थानों पर लगाकर वो ये समझ सकेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। It's as simple as that. वो इतना ही साधारण है। That's why whether you just pray 2 words, इसलिए आप जब दो शब्द की प्रार्थना करें, 2 sentences, दो सेंटेंस का भी or half minute, और आधा मिनट pray with your heart. अपने पूरे हृदय से प्रार्थना Don't make करिए। it a formality. उसको एक फॉर्मेलिटी मत बनाइए। Talk to him. Hallelujah. उनसे बातें करिए आप Start thinking about him. और उनके बारे में सोचना आप शुरू करिए Worship him in your heart. और उनकी अपने हृदय में उनकी भक्ति करिए। And when you do that, और जब आप इसे करेंगे and all of a sudden you'll feel the close fellowship of the Holy Spirit और अचानक ही आप एक Hallelujah. करीबी संगीति उस पवित्र आत्मा के साथ पा सकते हैं all around you. आपके इर्द गिर्द हर जगह। And it gets so anointed और ये इतना ही अभिषेक है till you can't hold it any longer. कि आप उसको और पकड़ के नहीं रख पाएंगे। That's what happened with me last youth camp. और यही चीज मेरे पिछले युद्ध कैंप में मेरे साथ You'll हुआ। raise up your hands आप अपने हाथों को उठा देंगे or do something, और कुछ ऐसा करेंगे, but you can't stand still when it comes. परंतु वो जब आएगा आप सीधे खड़े नहीं रहेंगे। Hallelujah. You cannot stand still. आप सिर्फ खड़े नहीं You रहेंगे, cannot stand still. You can't sit still. आप ऐसा सीधा नहीं बैठ पाएंगे। You'll raise up from your seat. आप अपने कुर्सी से उठ जाएंगे, You'll raise your hands अपने हाथों को उठाएंगे and you'll worship your Lord, और आप अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे, your Creator. Hallelujah. आपके सर्जनहार की, Because we are in His presence. क्योंकि हम उनके उपस्थिति में हैं। Don't look who is sitting next to you, आप ये मत देखना आपके आसपास कौन बैठा है, but look at the unseen guest. परंतु जो नहीं देख सकते उस गेस्ट को देखिए। Hallelujah. Don't think about the criticism. आप ये मत देखना कि वो आपको क्या आलोचना देंगे, What will people say? कि क्या लोग कहेंगे। If I dance, what will they say? यदि मैं नाचूं तो वो क्या कहेंगे, If I raise hand, what will they यदि say? मैं हाथों को उठाऊं तो वो क्या If I कहेंगे, jump, what will they यदि say? मैं कूदूं तो वो क्या सोचेंगे। We try to make walls, हम अपने लिए ही दीवार खड़े कर रहे हैं formalities. कि फॉर्मेलिटीज, But where the Spirit of the Lord is, परंतु जहां परमेश्वर की आत्मा there है is liberty. वहां पर स्वतंत्रता है। Hallelujah. हालेलुया। Break all the walls. सारे दीवारों को तोड़ दीजिए। If you want the angel to appear, यदि आप चाहते हैं कि उनके दूत प्रकट हो so you have to think about him. तो आपको उनके विषय में As, सोचना है। as Mary was thinking about him, जैसे मरियम ने उनके बारे में विचार किया, all of a sudden, अचानक ही that feeling was so great around her वो अनुभव इतना ही उसके इर्द गिर्द इतना बढ़ चुका था that she raised up her head. कि उसने अपने सिर को उठाया, And when she did, और जब उसने उठाया standing before her was a light. उसके सामने जो खड़ा था वो एक उजाला था, And standing by the light was Gabriel the angel, और उस रोशनी में कौन खड़ा था? वो गाब्रियल दूत खड़ा था, the जिब्राइल, archangel of God. जो परमेश्वर का दूत है। Amen. And that's what for us to take something from this message. और यही एक चीज है जो आज हम इस संदेश से सीखना है। What prophet says, जो नबी ने कहा, if you want angels to appear to you, यदि आप चाहे कि दूत आकर आपके पास प्रकट हो, I mean, if you want angels to appear to you, यदि आप चाहे कि दूत आपके पास आकर प्रकट हो, how many of you want? आप में से कितने लोग चाहते हैं? Amen. Brother Bram says, if you want angels appear to you, भाई ब्रनम कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि दूत आपके पास प्रकट हो, keep your mind on God. तो आप अपने मनों को परमेश्वर पर रखना। And that's what the remaining part I want to stress on that. मेरे को बाकी के उस चीज पर आपको जोर डालना The है। first thing is keep your mind on God सबसे पहला ये बात है कि अपने मन को आप परमेश्वर पे रखना, and of the things of the world. Of the things of the world. और संसार की बातों से उसको दूर कर देना। Hallelujah. हालेलुया। That's why when you come here, इसलिए जब हम यहाँ आते हैं, take off the things of the world from your mind संसार की सारी बातों को अपने मन से निकाल and दीजिए keep your mind on God. और अपने मन को परमेश्वर पर लगा Draw कर nigh to रखना God और परमेश्वर के निकट जाना, and He will draw nigh to और वो you. आपके करीब आएगा, निकट आएगा। हालेलुया। That's what King David says. और वही दाऊद राजा ने कहा, I have set the Lord always before me. मैं हमेशा परमेश्वर के अपने सम्मुख रखता हूँ, That's why I shall not
be moved. इसलिए मैं कभी नहीं ठुकरा जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। I have always set the Lord before me. मैं हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता हूँ। I shall not be moved. मैं अब नहीं गिराया जाऊंगा। You are drawing close to Him. आप उनके निकट जाते हैं। You got the world shut out. आपने संसार को बाहर निकल Just दिया। you and He are together. अब सिर्फ आप और वो ही साथ में हैं। Amen. The first step of shutting the world was putting off your internet. सबसे पहला कदम जो आपने संसार को बाहर निकाला वो आपका इंटरनेट जो चला गया वही है। Amen. Amen. You are drawing close to Him. आप उनके निकट जा रहे हैं। You got the world shut out. आप संसार को निकाल देते हैं। Just you and Him. अब सिर्फ आप और परमेश्वर Hallelujah. हैं। How many of you want that fellowship? कितने लोग ऐसा एक संगति चाहते हैं? You and Him. सिर्फ आप और परमेश्वर। Don't bring any parents in that fellowship, आप अपने माँ बाप को तक उस संगति में मत लाना। in that relationship. उस रिश्ते में Not your brothers, अपने भाइयों को भी not नहीं, your sisters, अपने बहनों को भी not नहीं, your friends. या अपने दोस्तों को Only भी Him and you. नहीं। सिर्फ परमेश्वर और आप। Hallelujah. Close relationship. एक करीब एक रिश्ता। Amen. Do you believe you have placed the Lord between you and your sin? क्या यहाँ पर नबी कहते हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अपने परमेश्वर को अपने और अपने पाप के बीच में रखते हैं? Amen. आमीन। If you haven't done yet, यदि आपने अब तक नहीं किए do it now. तो उसे अभी करिए। Keep the Lord between you and your sin, परमेश्वर को आपके और अपने पाप के बीच में रखिए। between you and your sickness, आपके और आपकी बीमारियों के बीच में, between you and your fault, आपके और आपकी गलतियों के बीच between में, you and your ways. आपके और आपके तरीकों के बीच में। And let's say, और मिलकर कहें the Lord is always before me, कि परमेश्वर हर समय मेरे सम्मुख है and I am in His presence. और मैं उनके उपस्थिति में Hallelujah. हूँ। हालेलुया। Amen. The Lord is always before me, परमेश्वर हर समय मेरे सम्मुख में है and I shall not be moved. और मैं कभी नहीं गिरूंगा। I am in His presence. मैं उनके उपस्थिति में हूँ। It's good to hear that, ये सुनने में कितना अच्छा है, but let's take it to the next level. परंतु अब इसको और एक कदम आगे बढ़ाए। The next time I start to light a cigarette, और जब अगली बार जब मैं एक सिगरेट को जलाऊं, the Lord is before me. परमेश्वर मेरे सम्मुख में है। Hallelujah. Amen. आमीन। Keep the Lord between you and sin. परमेश्वर को आप अपने और उस पाप के बीच में रखना। Hallelujah. हालेलुया। The next time I start to light a cigarette, the Lord is before me. अगली बार जब मैं सिगरेट जलाऊं तो परमेश्वर मेरे सम्मुख है। The next time I start to lust, जब अगली बार मुझे वासना आए या लालसा में जाऊं, the Lord is before me. परमेश्वर मेरे सम्मुख The है। next time I start to tell anything wrong, जब अगली बार जब मैं कुछ गलत कहने जाऊं, the Lord is before me. परमेश्वर मेरे सम्मुख है। The next time you try to lie to your parents जब अगली बार जब आप अपने माँ बाप से झूठ कहें that I'm going to college, कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ and in reality you are bunking the college, और आप कॉलेज बंक करते हैं and you are a part of a mass bunking. और आप एक मास बंक के पार्ट हो, Imagine the next time you do wrong, और जब अगली बार आप गलती करें, the Lord is before me. याद रखना परमेश्वर The आपके next time I सम्मुख है। start to say a bad thing, और जब आप अगली बार कुछ गलत कहें, the Lord is before me. परमेश्वर मेरे सम्मुख है। I shall not be moved. मैं कभी नहीं हिलाया जाऊंगा। I'll live in His presence each day. मैं उनके उपस्थिति में हर दिन And जीऊंगा my dealings और मेरे सारे डीलिंग्स each day हर दिन with my talk, मेरे बातों से I'll walk as if Lord is before me. मैं ऐसा चलूंगा कि परमेश्वर मेरे सम्मुख है। I'll walk as if the Lord is before me. मैं ऐसा चलूंगा कि परमेश्वर मेरे सम्मुख है। Hallelujah. हालेलुया। Because tonight I have put Him before me. क्योंकि आज रात मैंने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया The हूँ। Lord is before me. अब परमेश्वर मेरे सम्मुख I है। shall not be moved. मैं कभी हिलाया नहीं That's why जाऊंगा। prophet said, if you want the angels to appear, इसलिए नबी कहते हैं यदि आप चाहे कि दूत आपके पास प्रकट हो, I hope the sisters are listening. मैं आशा रखता हूँ ये बहन सब सुन रहे हैं। I know it's not easy to sit and listen to a message, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है कि बैठ के संदेश को सुनना, especially the message of the hour. क्योंकि और विशेष करके इस घड़ी के संदेश में, Because the preachers have to fight to prepare a sermon, क्योंकि प्रचारकों को लड़ना पड़ता है एक ऐसा संदेश को तैयार करने, and you have to fight with your own thoughts to sit and listen and concentrate on the message of the और hour. आपको अपने विचारों से लड़ना पड़ता है ताकि आप यहाँ बैठकर इस अंतिम समय को सुन It's not सकें। easy to sit under a fan and you can I can try to hear the message. You'll have to fight with your thoughts. ये आसान नहीं है कि एक फैन के नीचे बैठ के आप ऐसे ही संदेश सुने, आपको अपने Keep your विचारों से mind लड़ना पड़ता centered है। on Him. आप अपने मन को उस पे मध्य में रखना। Amen. The appearing of the angel to the Mary, और जो दूत का प्रकट हुआ जो मरियम के पास, it frightened the little virgin. वो उस छोटी सी कुंवारी को उसने घबरा दिया। But whenever the angel of the Lord comes, परंतु जब कभी परमेश्वर का दूत आता है, he had a message for her. वो उसके पास एक संदेश को लाता है। Hallelujah. हालेलुया। The angel got a message for Mary. और दूत ने मरियम के लिए एक संदेश को लाया। And when an angel comes, और जब दूत आता है, he's got a message for you. और वो आपके लिए भी एक संदेश को लाता है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you
happy that we have an earthly messenger? आप कितने लोग आनंदित थे कि हमारे The पास एक seventh angel. कि वो सातवां दूत हमारे लिए है। Hallelujah. हालेलुया। And he got a message for you. और वो आपके लिए एक संदेश को In लाता है। Revelation 18:4. और रेवलेशन 18:4 में And I heard a voice from heaven. कि मैंने एक स्वर्ग से एक वाणी को सुनी Come out of her, my people. कि मेरे लोग वहां से बाहर आओ। Hallelujah. हालेलुया। We say, oh, we are happy that we have come out of denominationalism. आप सोचेंगे कि हम संप्रदाय से बाहर आ But गए, right now the Babylonish thinking is it's in the world. परंतु आज बाबिलोन के विचार आज The संसार में है। Babylonian way of thinking. वो बाबिलोन के तरीके के The विचार, Babylonian way of living. और बाबिलोनियन तरीके के जीने के, The Babylonian way of dressing. और बाबिलोनियन कपड़े पहनने के तरीके। Hallelujah. हालेलुया। The Babylonian way of having a relationship. और बाबिलोन तरीके में एक रिश्ता को रखना, That man with man, कि पुरुष पुरुष के साथ woman with woman. और एक स्त्री स्त्री के साथ। This is Babylonish thinking that is we can see in this modern Babylon. और आज उस बाबिलोन में हम एक मॉडर्न And बाबिलोन को that's देख why सकते God sent an angel, हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा which है, was the seventh angel. और वो सातवां दूत था, And his message was, और उसका संदेश था come out of her, my people. कि मेरे लोग वहां से बाहर आए। Hallelujah. हालेलुया। Not only from the denominational churches, सिर्फ संप्रदाय के कलीसिया से नहीं, but from the denominational thinking, परंतु संप्रदाय के विचारों से, denominational mindset, वो संप्रदाय के विचारों उस मनों से, and come into the message of the hour. और इस घड़ी के संदेश में आ जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Just keep your mind on him. अपने विचार को उस पर बना Keep कर thinking रखना, about him. उसके बारे में ही सोचना। What to think about him? आपको उसके बारे में सोचना है That how lovely he is, कितना वो प्यारा है, how sweet he is. कितना वो नम्र है, Oh, his promises. उसके प्रतिज्ञा है, How true are his promises. कितने सच है उसके Oh, if you प्रतिज्ञा। are sick, if you are sick, यदि आप बीमार हैं get this on your mind. तो आप अपने मन में इस बात को लेना That he was wounded for my transgression. कि मेरे उसके खोड़े खाने से मैं चंगाई He पाया, was bruised for my iniquity. वो मेरे अधर्मों के लिए वो मारा गया, The chastisement of peace was upon him. कि वो शांति के लिए उसे उतारना पड़ी. और मेरे शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी थी, And with his stripes I was healed. और उसके खोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई। Keep your mind centered like that. अपने मन को ऐसे ही उसको बना कर रखना, Something will happen to you. कुछ तो आपके पास होगा। That's what the formula the prophet gave us. यही फॉर्मूला था नबी ने हमें जो दिया, Keep your mind centered like that. कि अपने मन को ऐसा बनाए रखो, Something will happen to you. कुछ तो आपके पास होगा, All of a sudden, और अचानक ही there will be something drawn nigh to you. कि कुछ तो एक चीज आपके निकट आता An है, anointing will come on you. एक अभिषेक आप पर आता है, And out of that chair you'll go. और आप अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Draw nigh unto the Lord, परमेश्वर के निकट आओ, and he will draw nigh unto और वो you. तुम्हारे निकट आता I am है। finishing with the last quote. और मैं यहाँ पर आखिरी कोट से खत्म करता हूँ। When Mary believed on the angel's word, जब मरियम ने उस दूत के वचनों पर विश्वास किया, don't think it was easy. आप सोचना, ये मत सोचना कि वो आसान था, There was a criticism for her. वहां पर उसके लिए उसको आलोचना She हुई, threw herself in the liability of criticism. उसने अपने आप को उस आलोचना में उसने खुद ने डाला था। But Mary didn't stop there परंतु मरियम वहीं नहीं रुकी, to think about criticism. आप आलोचना के बारे में सोचे, She didn't care about criticism. उसने आलोचना के बारे में परवाह ही नहीं की। Amen. Young brothers and sisters, और जवान भाई बहनों, wherever you are fellowshipping, जहाँ कहीं भी आप संगति में हो, don't think what others will think about you. आप ये मत सोचना कि बाकी मेरे बारे में Don't क्या think about सोचते any हैं, criticism. या फिर वो क्या आलोचना देंगे। When a man comes to get the Holy Ghost, जब एक मनुष्य आता है पवित्र आत्मा पाने, that's why we have come here, इसलिए आज भी हम यहाँ आए हैं, to get the Holy Ghost, ताकि हम पवित्र आत्मा पा to get the सके, anointing. कि एक अभिषेक को पा So you सके। don't care what the neighbors is going to say. तो आप ये मत देखना कि पड़ोस वाला क्या कहेगा, You don't care if you shout, कि आप ये परवाह मत करना कि वो चिल्लाने से क्या होगा, you speak with tongues, कि आप अन्य भाषा में कहें, or whatever you do. या आप जो कुछ करें, You are past all that thinking. आप उस सारे चीजों से आप पार कर चुके हैं। You took God at His word, आप परमेश्वर उसके वचन को ले लिए and हैं, you don't care for criticism. और आप आलोचना की परवाह नहीं करते। Hallelujah. हालेलुया। And I like what Brother Branham is saying now. और मैं ये पसंद करता हूँ भाई ब्रनम ने जो You कहा, lost all your devil-made, homemade intellectual society called prestige. आपने अपने सारे मनुष्य के बनाए गए और शैतान के बनाए गए सारे चीजों को जो घमंड कहलाता है उसको आपने खो दिया है। सम्मान, सम्मान जो है, prestige. आपका सम्मान, When you enter here, जब आप यहाँ पर आते हैं, take off your prestige and come आप inside. अपना सम्मान को बाहर छोड़कर अंदर आना, Take off your pride and come अपने inside. सम्मान को बाहर छोड़कर आना। Hallelujah. Because Brother हालेलुया। Branham says, क्योंकि भाई ब्रनम कहते the way हैं to go up is down. ऊपर जाने का रास्ता नीचे है। The God revealing Himself in simplicity, परमेश्वर अपने आप को साधारणता में प्रकट hiding करता Himself है, in simplicity, वो अपने आप को सरलता में छिपाता and है revealing Himself in simplicity. और अपने आप को सरलता में प्रकट भी करता है। That's why the prestige and all, इसलिए सारे देखिए pride and prestige, दुल्हन और देखिए ये गर्व, it's devil made. वो शैतान का बनाया गया It's है। an intellectual society called prestige. वो ये पूरा बुद्धिमान ये सोसाइटी का बनाया गया एक Amen. prestige We है। don't want this prestige and all. हमें ये प्रेस्टीज सब नहीं चाहिए। What we want is, हमें क्या चाहिए? we want favor with God.
हमें परमेश्वर के साथ एक कृपा कृपा दृष्टि दृष्टि चाहिए। Yes, you don't care what the Holy Spirit causes you to do. आप ये नहीं परवाह करते कि पवित्र आत्मा आपको क्या कराता है। Amen. If he causes you to shout, यदि वो आपको चिल्लाने लगाता है, if he causes you to scream, यदि वो आपको बहुत चिल्लाने लगाता if he है, causes you to cry यदि वो आपको रोने लगाता है, or bawl or anything you want to do, या आपको जो कुछ आपकी करने के आपको मन maybe कराता this है, experience you might not have got before, हो सकता है ये अनुभव आपको पहले ना मिला हो, but if the Holy Spirit causes you to do, परंतु पवित्र आत्मा आपको ये करने के लिए कार्य amen, that करता means है, his anointing is upon you. यानी उनका अभिषेक आपके ऊपर है। Hallelujah. That means you have taken off your prestige यानी इसका मतलब आपने आपका जो गौरव है अपना बाहर निकाल दिया and है your mind is centered on him और आपका मन उनके ऊपर आपने बना लिया है and you lost all your man-made stuff और आपने अपना सारे मनुष्य के बनाए गए चीजों को छोड़ दिया and you are in Christ Jesus. और आप अब फ्री मसीह- हो चुके हैं मसीह यीशु में। The Spirit of God has set you free और परमेश्वर की आत्मा ने आपको अब जो है फ्री कर दिया है and you are free in the power of God. और आप परमेश्वर के सामर्थ्य में भी आप फ्री हो Bathing is in his beauty, और उसके खूबसूरता में आप अपना रहे हैं worshiping him in the Spirit and truth. और उसकी भक्ति आराधना और सच्चाई और आत्मा और सच्चाई से आप कर रहे हैं। You are a free person. आप अब एक फ्री पर्सन है, Azad व्यक्ति हो. आजाद व्यक्ति है। You have took the word of God आपने परमेश्वर के वचन को लिया है and it took a hold in your heart. और आपने उसको अपने हृदय में Amen. थाम लिया है। I don't care if you comes from a message believing church or you're born into a message believing family. मैं ये परवाह नहीं करता कि आप एक संदेश के विश्वासी के कलीसिया से आए या उसमें जन्मे हैं Or your father is a pastor, like Yeah. my father is a pastor. या मेरे पिताजी एक फास्टर हो या आपके पिताजी एक फास्टर हो, Then nobody is going to stand for you. वहाँ आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहने Your वाला। credentials will not work there. आपके जो भी क्रेडेंशियल्स है वहाँ काम नहीं That करेंगे I was daughter of a pastor. कि मैं एक फास्टर की बेटी थी, My father was a deacon. मेरे पिता एक डीकन थे, My father was an evangelist. मेरे पिता एक And इवेंजलिस्ट nothing थे। is going to work there. वहाँ पर ये कुछ भी काम There नहीं will be only चलेगा। one who will stand for you. That's the Lord Jesus Christ. वहाँ पे यदि कोई आपके लिए खड़े रहे तो वो प्रभु यीशु मसीह है। Amen. That's right. Just see, are you free or not? कि यही देखो कि आज आप आजाद हो कि नहीं। We know the tactics of the devil. हम शैतान के तरीकों को जानते हैं। You might be a church member, हो सकता है आप एक कलीसिया के सदस्य हैं, but we are going beyond that. परंतु हम उससे भी पार जा रहे Is हैं। there any bondages? Bandhan. क्या कोई बंधन है? Is there anything binding you? क्या कोई चीज आपको बंधे रख रहा है? Is there anything that's binding you to a spot क्या आपको कोई ऐसा चीज है जो आपको एक जगह पे बांध कर रखता है and not letting you come free and filled with His Spirit? और आपको उसमें से बाहर आजाद होने नहीं देता या उनके आत्मा में नहीं भरने If that is देता? the case, यदि वो ही इस समस्या है, don't leave until you have received the Holy Spirit. आप अपने स्थान को तब तक मत छोड़ना जब तक आप पवित्र आत्मा से भेंट ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Who knows this is our last chance? क्या पता कि ये हमारा आखिरी मौका हो। It might be a last meeting for somebody. ये कुछ लोगों के लिए आखिरी सभा भी हो सकती है। If you haven't received the Holy Spirit, यदि आपने अब तक पवित्र आत्मा ना पाए हो listen, my precious brothers. तो सुनिए मेरे प्रिय भाइयों, Amen. Don't you leave this conference ground आप इस सम्मेलन की इस भूमि को तब तक मत छोड़ना until you have received it. जब तक आप उसको ना पाए। You stay right with God. आप Hallelujah. परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। You go in there to pray. और जब आप वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं Just go in and say, और सिर्फ अंदर जाकर कहना, Lord, I come in to get the Holy Ghost. परमेश्वर प्रभु मैं आपके पवित्र आत्मा पाने आया हूँ। That's as simple as that. वो उतना ही आसान है Lord, I come in to get the Holy Ghost. कि प्रभु मैं यहाँ पर आपकी पवित्र आत्मा And पाने see, आया He'll हूँ take care of the rest. और बाकी सारे बातों का वो जिम्मेदारी वो ले लेंगे, Just ख्याल वो say, I रखेगा। want the Holy Spirit. आपको सिर्फ इतना कहना है मुझे पवित्र आत्मा And He'll चाहिए take care of the rest. और बाकी सारा जवाबदारी उनका है। Hallelujah. Just be real sincere. और आप सच्चाई और उत्तम से रहना Break all the thoughts. और सारे विचारों को तोड़ देना। And just say, remember this morning may be your morning और हो सकता है ये सुबह आपको हो कि आप हो सकता है ये आपकी सुबह हो to receive the Holy Spirit. कि आप उस पवित्र आत्मा को पाए Just say, this is my hour. और आप कहना कि ये मेरा समय है। Hallelujah. Hallelujah. This is my time. ये मेरा समय है। This is the time that I'm going to receive it. यही वो समय है कि मैं उसको स्वीकार करने This वाला is हूँ। my hour. ये मेरा घड़ी है। Oh, I don't think so. I've conveyed properly. मेरे ख्याल से मैं इसको सही तरीके से नहीं I'm बताया हूँ। sorry. I think I'll read it again. मैं फिर से उसको पढ़ता हूँ। You got to go in there saying, आपको अंदर ऐसे कहते हुए जाना है this is the time. कि यही वो समय है I'm going to receive it. और मैं उसको ग्रहण करने वाला हूँ। I'm going to receive it. मैं उसको ग्रहण करने वाला हूँ। Still not convincing. Amen. अभी भी मुझे आमीन ठीक से नहीं लगा।
You got to go in there saying, आपको ये कहते हुए अंदर जाना है this is the time कि यही वो समय है I'm going to receive और it. मैं उसको आज पाने वाला हूँ। Don't think I'm just quoting Brother Branham here. कि आप यही मत सोचना कि मैं भाई ब्रनम Take it personally for you. ये व्यक्तिगत तौर में अपने लिए लेना, Because this is a promise. क्योंकि ये एक प्रतिज्ञा है Say, I am going to receive और it. आप कहना मैं आज उसे पाने वाला Take it हूँ। personally for you. आज व्यक्तिगत तौर में आप ले लेना I am going to receive कि it. मैं उसे आज पाने वाला हूँ। Hallelujah. Hallelujah. This is my hour. ये मेरा घड़ी है। Can everybody say, this is my क्या hour? सब कह सकते हैं ये मेरा घड़ी है? This is my hour. ये मेरा घड़ी है। Hallelujah. Hallelujah. I can see sisters behind. I mean, they're lost in their thoughts. Sisters, I Bhainon. request you. The prophet is begging you. Say, this is my hour. और बहनों जो पीछे बैठे हैं मैं आपसे चाहता हूँ, नबी यहाँ कहते हैं कि आप कहो कि ये मेरा घड़ी है। Please say, this is my hour. कृपया कहिए ये मेरा घड़ी है I mean, say, this is my और hour. आप कहिए ये मेरा घड़ी है Say, this is my और hour. कहिए ये मेरा घड़ी है। This is my time. ये मेरा समय है। Hallelujah. This is my Hallelujah. ये hour. मेरा घड़ी है। Satan wants to block our mouth. शैतान हमारे मुंह को बंद रखना चाहता है। Yes. Just see when we get out of here, how much we will chit-chatting with each other. सिर्फ ये इतना देखना कि बाहर निकलते आप अब कैसे बात Time will be करेंगे less for us. कि समय हमारे लिए कम पड़ We will be जाएगा। have enough talk, enough topics. हमारे पास इतने But टॉपिक्स in the house of God, परंतु परमेश्वर के घर भवन में I don't want to be sitting like a stiff shirt. मुझे एकदम ऐसे Amen. स्ट्रिप शर्ट के चरम समान नहीं रहना, सख्त होके मत सख्त होके बैठिए. नहीं बैठना है। Amen. Be free आप आजाद रहिए and say, this is my hour. और कहना ये मेरा घड़ी And है prophet says, and then you'll get it. और नबी कहते हैं तब तुम उसे पाओगे। You be real business with God. Real business with जब God. आप परमेश्वर से सच्चा रहोगे And God will be a real business with you. परमेश्वर भी आपसे सच्चा रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। That's a very strong statement. वो बहुत एक बड़ी बयान है You be real business with God. कि आप परमेश्वर से सच्चा रहिए। पहले आप सच्चे बनिए. Amen. Hallelujah. Not half-hearted way. सिर्फ आधा सच्चा नहीं, Real business with God. पूरा सच्चा बनना। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And then God will be a real business with you. तो परमेश्वर भी आपसे सच्चा रहेगा। Draw nigh unto me, आप मेरे निकट आओ, and I will draw nigh unto मैं you. तुम्हारे निकट Said आऊंगा। the Lord. वो प्रभु कहता है। Hallelujah. हालेलुया। God's word will defeat Satan any place, any time, on any condition. परमेश्वर का वचन शैतान को हराता है कोई भी स्थान, कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति में। That's why I'm trying to break the condition that you came in. इसलिए मैं आप जो परिस्थिति में उसको तोड़ना चाहता हूँ। Brother Benny and Brother Robin tried to break that condition. भाई बेनी और भाई रॉबिन ने उस परिस्थिति को तोड़ने की कोशिश की। Maybe this is the first session. हो सकता है ये पहला सेशन हो। We come with lot of baggage and lot of thinkings and lot of way of thinking. हम बहुत सारे विचार, बहुत सारे बोझ के साथ यहाँ आए होंगे, But God's word परंतु परमेश्वर का will वचन defeat Satan वो शैतान को हराता है any place, कोई भी स्थान, any time, कोई भी on समय any condition. और कोई भी परिस्थिति में। Hallelujah. Though हालेलुया। your sins be as scarlet. हो सकता है आपके प्रेम लाल रंग के हो। This is how we read the scripture. हम ऐसे ही वचन को पढ़ते हैं, But Brother Branham reading in a different way. परंतु भाई ब्रनम इसको अलग तरीके में पढ़ते हैं। He says, you said any conditions, Brother Branham. उन्होंने कहा भाई ब्रनम आप कहते हो कि हर परिस्थिति में। That's exactly what it said. वो बिल्कुल यही कहता है, Though your sins be as scarlet, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो they shall be white like snow. तो भी वो हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे। Only thing I'm asking you to do is और सिर्फ यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप करें, come to my prepared place, the altar. वो उस तैयार किए गए उस वेदी के उस स्थान पर आइए। God made an altar. परमेश्वर ने एक वेदी को बनाया There's है, an altar. वहां पर एक वेदी है, There's a place where you meet God. वहां एक स्थान है जहां परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। Come talk it over with me. और आके यहाँ से उनसे बातें करिए। I got a place prepared for you. मैं एक आपके लिए स्थान तैयार कर रहा A हूँ, remedy for you. एक आपके लिए एक उपाय। We are here now for only one sole purpose. हम सिर्फ एकमात्र मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, That is draw nigh unto God. जो परमेश्वर के निकट आना है। Let's do that with all that's within us. और हमारे में जितना बल है उस पूरे बल से हम उसको करेंगे Draw nigh unto God. कि परमेश्वर के निकट आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And he said, I'll draw nigh unto you. और उन्होंने कहा मैं तेरे निकट In आऊंगा। other words, he will reveal himself to you. और अलग शब्दों में कहने जाए तो वो अपने आप को आपको प्रकट करता है, And then the message will be real to you. और तब संदेश आपके लिए एकदम सच्चा बनता And है। the message will be not be limited to my dad said, my mom said. और तब आपका संदेश लिमिटेड नहीं रहेगा आपके माता या पिता No, का। my mom said not to wear short skirt. That's why I'm not wearing कि it. मेरे माँ ने कहा कि शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहना इसके लिए मैं नहीं पहन रही, ऐसा नहीं होगा फिर। My mom said not to cut hair. That's why I'm not cutting कि hair. मेरे माँ ने कहा कि बाल नहीं काटना इसलिए मैं नहीं बाल काट रही Don't हूँ। follow the message. That's because your parents are saying it. आप इसके लिए संदेश का पालन मत करना Come क्योंकि close आपके to माता God. पिता कहते हैं, बल्कि आप परमेश्वर के निकट आइए। Let God reveal himself to you. होना पाए कि परमेश्वर अपने आप को आप पर Let the प्रकट message करे, be real to कि you. ये संदेश आप पर सच्चा बने। I'm doing
it because my prophet said it. मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने इसको कहा Not है, because my parents said it. ना कि मेरे माँ बाप ने कहा, Not because deacons are forcing me to come in long skirt. ना क्योंकि डीकन्स ने मुझे कहा वो बड़े Not स्कर्ट because को pastor पहनने, is preaching. ना क्योंकि फास्टर ने प्रचार But किया, because the message has been real to me. परंतु क्योंकि ये संदेश मेरे लिए सच्चा रहा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Because long skirts and long hair is not going to take you in heaven. क्योंकि लंबे बाल या लंबे स्कर्ट आपको स्वर्ग में नहीं लेके Because जाने there वाला। are Anabaptist people, they don't go and get education in schools. They don't use any inventions. क्योंकि एनाबैप्टिज्म वो लोग हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं Girls don't mingle with boys. और जो लड़की लड़कों से मिलते They भी have नहीं हैं, long hairs, उनके बड़े बाल होते long हैं, skirts, बड़े स्कर्ट्स होते हैं, long sleeves. बड़े स्लीव्स होते हैं। Oh man, that's not the criteria to go to heaven. वो क्राइटेरिया वो नहीं है कि The आप उसके message द्वारा should be स्वर्ग real जाएंगे। to you. ये संदेश आपके लिए सच्चा बने। I am doing this because the word is real to me. मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि वचन मेरे लिए सच्चा है। Hallelujah. हालेलुया। I come to the camp just because my parents registered me. मैं कैंप इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने नाम दिया है। No, come to the camp because God is calling you. आप कैंप इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता Because है, you want to come close to God. क्योंकि आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं। No, bus was going, that's why I also tagged along. कि बस जा रहा था इसलिए मैं मुझे भी यहाँ लेकर आ गया, ऐसा Even नहीं। if that thing has happened to you, may the Lord bless you. अगर वैसे भी आप यदि आए हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करे At least you have courage here. कि आप यहाँ तो आ गए। May the Lord bless you this morning. कि आज सुबह परमेश्वर आपको आशीष Draw करे। nigh to God परमेश्वर के निकट आइए and He will draw nigh to you. और वो आपके निकट आता है। Hallelujah. हालेलुया। Can we stand on our feet tonight? क्या अपने this हम morning? पैरों पर खड़े हो जाए? Hallelujah. Hallelujah. Give a clap offering of praise. हम परमेश्वर Hallelujah. के लिए ताली बजाएंगे, Praise Him. और Hallelujah. उसकी स्तुति Come with करेंगे a sincere heart. और एक समर्पण And I हृदय के believe साथ। as we experienced in the last camp meetings, और जैसे हमने पिछले कैंप मीटिंग में अनुभव किए, this meeting also we will experience. इस कैंप सभाओं में भी हम Hallelujah. अनुभव करेंगे His anointing. उनके अभिषेक को। He will deal with us. वो हमसे Hallelujah. बातें करेगा। If there is any bondage, यदि यहाँ पर कोई बंदी any है, of the social media bondage that is holding you, जो भी सोशल मीडिया का बंधन आपको जो बांध कर रखा है, any worldliness, the friendship of this worldliness, या भी कोई संसार की चीजें या कोई भी संसार because की Brother दोस्ती, Branham says worldliness is sin. क्योंकि भाई ब्रनम कहते हैं दुनियादारी ही शायद पाप है। That's what worldliness is sin. वो क्या है? दुनियादारी ही पाप है। That's why stay away from the worldliness. इसलिए आपको दुनियादारी से दूर रहना Do है। not love the world. या क्या आप संसार से Do not love the world संसार से आप प्रेम ना and not करना the things of the world. और संसार के चीजों से भी प्रेम ना If we करना। love the things of the world, यदि आप संसार की चीजों से प्रेम करते the हैं word of God says the love of God is not in us. तो तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे में नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So this morning, these 3 days, तो आज सवेरे ये 3 दिन our precious brother Kingsley will be taking over, हमारे भाई प्रिय भाई किंसली सब आगे का सब and संभालेंगे we are coming with expectation. और हम एक अपेक्षा के साथ आएंगे। We are coming with expectation. हम एक अपेक्षा के साथ आएंगे। I said we are coming with an मैं expectation. कह रहा हूँ कि हम एक अपेक्षा के साथ आएंगे। I think my conversation is not correct, I guess, because I think you are not understanding what I'm trying to say. I think I should go back to Hindi. I said we are coming with an expectation. मुझे लग रहा है आप मेरी बात को नहीं समझ I रहे want to hear amen. क्या हम एक अपेक्षा के साथ आएंगे? मैं आमीन सुनना चाहता It's हूँ। not only Brother Robin's expectation, ये सिर्फ भाई रॉबिन का अपेक्षा नहीं, or Brother Vincent's expectation, या भाई विनफ्रेड का भी अपेक्षा or not नहीं, my expectation. या मेरा अपेक्षा It's नहीं, your expectation also ये आपका अपेक्षा भी बने that the Lord will deal with you कि परमेश्वर आपके साथ डील in करे each and every services. और हर सभाओं में। Hallelujah. हालेलुया। And we'll go here rejoicing. और हम यहाँ से आनंद होकर Can we जाएं। say our Lord is wonderful, क्या Lord? हम कह सकते हैं हमारा परमेश्वर Hallelujah. अद्भुत परमेश्वर है। Wonderful, wonderful Jesus is to me. अद्भुत Hallelujah. परमेश्वर मेरे लिए है। Hallelujah. 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 He's wonderful. वो अद्भुत है। Amen. I would hand over the service to brother. Yeah. God bless you, brother. Praise the Lord. How many are happy this morning? कितने लोग खुश है कि आप परमेश्वर आपके बीच में है? हाँ, क्या आपने उसको महसूस किया सचमुच में या केवल स्टेज पर था वो? मैं समझता हूँ कि परमेश्वर आपके पास में निकट में है बिल्कुल, और ये चाहते कि आप उसको कब बुलाएंगे। और इस गीत को हम लोग गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। स्तुति। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमसे बातें किया, मुझसे भी बातें किया, मैं विश्वास करता हूं कि आपसे भी बातें किया है। और होने देखिए आने वाली सभा में परमेश्वर हमारे साथ में फिर एक बार बातें करें। इस गीत को हम लेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। जब उसके निकट में जाते, उसके पास में जब जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हो इस गीत के लिए। इस गीत को हम लोग गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से। यीशु तेरे करीब आने से
बदल गए। यीशु तेरे चोरे से जिंदगी मेरे संवर गए। तूने मुझे है बचाया। कितनों को बचाया? क्या उसको हाथ दिखा सकते, कह सकते हाँ प्रभु तूने मुझे बचाया। ओ तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। ओ मैं धन्यवाद करता, आमेन हालेलुया, धन्यवाद करता रहूंगा। ऊंची आवाज में मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
you, Jesus. I would request Pastor Winfred to come forward and pray for all of us that God may help us to walk closer to Him. Thank you, Jesus. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Let us pray. Dear brothers and sisters, we have heard, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. If you don't draw nigh to Him, somebody is there to come to you. He need not have any invitation from you. He is always looking for the chance to draw nigh to you. Eve did not draw nigh to Satan. Satan came to her. शैतान वो हवा के पास में आया. हवा नहीं गई वहां पर, लेकिन वो आया. That's why it's mandatory each and every Christian और ये सबसे अच्छी बात होगी हर एक मसीह भाई बहन के लिए must come to Jesus. कि वो यीशु के पास आए. It's an emergency, brothers and sisters. और आपातकालीन समय आ चुका है. One day one youth came. और एक नौजवान एक दिन आया. He came to the right person. वो सही उस स्थान पर आया. He came to the right doctrine. उस सही सिद्धांत के पास में That आया. is Jesus Christ. और यीशु मसीह के पास. He drew nigh to Him. और बिल्कुल निकट में चला गया. He asked Jesus, और यीशु से कहा, उसने पूछा, what must I do to inherit the kingdom of कि God? मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए? Jesus rightly answered him. और यीशु ने उस सच रूप में कहा. Jesus loved him. यीशु ने इतना प्रेम किया उससे. Jesus answered him rightly. यीशु ने उसको सही प्रकार से उत्तर दिया. He said, उसने कहा, right from childhood, और उससे कहा कि मैं बचपन से ही I've प्रभु been obedient. मैं सब कुछ आज्ञाकारी I'm रहा keeping the law of Moses. और मैं मूसा के नियमों को पालन करते But आया. Jesus said, लेकिन यीशु ने उसको उत्तर दिया. you're lacking something. उसने कहा कि तेरे बात में कुछ कमी है. Today, here, आज भी सुबह में dear brothers and sisters, प्यारे भाई बहनों, it is not a coincidence. और ये कोई ऐसा अचानक नहीं हुआ, God brought you here. लेकिन परमेश्वर आपको यहाँ पर ले आया. What are you lacking today? और आपके जीवन के अंदर क्या कमी है आज? That man had a right answer. और उस मनुष्य के पास में एक सही उत्तर He उसको said, मिला. you're a rich man. वैसे कहा तू धनी है You sell everything. और तू सब कुछ बेच You come and follow me. और मेरे पीछे हो जा. That was very sad for him. और ये बहुत कठिन था उस भाई के लिए. उस Though Jesus loved him, यद्यपि यीशु ने उसको प्रेम किया he got a right answer. और उसको सही जवाब भी मिला, But it लेकिन- was not enough for him to turn to Jesus. लेकिन उसके पास ऐसा कुछ कारण नहीं बना कि वो यीशु की और उस बातों को माने. He went away very sadly. और वहां पर ऐसे निरंकुश या निराश होकर चला गया. These 3 days are very important for you, brothers and और ये sisters. 3 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ठहरेंगे. Don't go sad. और यहाँ से आप ऐसे नाराज होकर नहीं जाइए, Have something from Jesus. लेकिन यीशु के पास कुछ ले जाइए. Draw nigh to him. उसके निकट में जाइए, Jesus is the answer. क्योंकि यीशु इस सब का For the जवाब world है. today, और आज की दुनिया के लिए यीशु ही जवाब है. without Jesus, यीशु के बिना you are nowhere. आप कहीं पर भी नहीं हो, आपका ठिकाना नहीं हो. That rich man ओ धनी जो व्यक्ति तो, died afterwards. और जब वो मरने के He बाद went to hell. और नरक में जब गया, Brothers and sisters, प्यारे भाई बहनों, he did not ask a bottle of water. उसने नहीं कहा कि मुझे एक बोतल पानी He पिलाओ. said, a drop of water. उसने कहा कि एक बूंद मुझे पिलाओ, A drop of water एक ही बूंद, to suffice my thirsty. ताकि मेरे उस प्यास को मिट जाए. Even that he did not get there. लेकिन उसका एक बूंद उसको नहीं मिला. That was his result. और उसका ये नतीजा था. Abraham said, इब्राहिम ने कहा I cannot send Lazarus to कि you. मैं लाजर को तेरे पास नहीं भेज पाऊंगा. Time is too short. समय बहुत निकट है. Jesus is coming. यीशु मसीह जल्दी आता है. Draw nigh to him. उसके निकट में आइए, Draw nigh to him. उसके निकट में आइए. It is an emergency call. और क्योंकि ये आपातकालीन ये पुकार We है, do not know tomorrow what will happen. हम नहीं जानते कल क्या होगा. The world is in under chaos. और सारा जगत गड़बड़ी में छाया हुआ But है. Jesus is calling his people. लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों को पुकारता है. Draw nigh to me. उसके निकट आओ कहता है वो, I will draw nigh. और मैं तुम्हारे निकट में आऊंगा. Otherwise, नहीं तो Bible says he will forsake you. बाइबल कहती कि तुझे वो तुच्छ जानेगा, तू If you छोड़ reject देगा. him, यदि उसको तू छोड़ देगा तो he इनकार will करेगा reject तो you. वो आपको छोड़ देगा. फिर Think about your life today. आज के आपके जीवन के बारे में सोचिए, Forget IPL. और आपके आईपीएल जो मैच है उसको भूल जाइए, Forget everything. और सब कुछ भूल जाइए.
But think about your soul. लेकिन आपके प्राण के विषय में आप सोचिए। That young man had everything. और नौजवान के पास में सब कुछ था उसके In पास, the hell he must have been thinking, और उसके हृदय में सोचता होगा शायद I went to right convention. कि मैं तो सही प्रकार की कन्वेंशन में I गया, heard a right preacher preaching. मैंने सही प्रकार से प्रचार जो किया उसको सुना, It hurted me. और मुझे दुख पहुंचाया वो। But लेकिन I forsaken the invitation. मैं उस नेवता को मैं इनकार करता हूँ। Brothers and sisters, प्यारो भाई और बहनों, this is the invitation for you. आपके लिए नेवता है, पुकार है, Draw बुलावा nigh to है। him. उसके निकट में आइए, Draw nigh. He will draw nigh to you. और फिर वो आपके निकट में आ Whatever जाए। you are lacking may be. और जो भी आपके जीवन में कमी घटिया होगी, You may be sick today. हो सकता है आप बीमार हैं, You may need something today. या आपके पास भी कुछ हो He जरूरत is the है, provider. वो ये आपको जरूरत He is देने the वाला है। healer. वो आपको चंगाई दे सकता He है, is the savior. वो आपका छुड़ाने वाला He है, will show you the way. वो आपको मार्ग दिखाता है। Let us pray. प्रार्थना करते हैं। Most gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी परमेश्वर, we come before thy throne of grace. ओ तेरे उस दर्शन के पास में आते In हैं, this afternoon time, और इस सुबह के समय में oh dear God, तेरे प्रभु यीशु मसीह according to your scripture, अपने वचन के अनुसार according to your promise, और तेरे प्रतिज्ञा के you अनुसार are here in our midst. तू हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। You said, Lord, तूने कहा where प्रभु, two or three gathered in my जहाँ name, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, I'll be in their midst. मैं उनके मध्य में रहता Lord, you हूँ। are in our midst today. ओ प्रभु, तू हमारे मध्य में है, These young brothers and sisters needs you, Lord. और नौजवान स्त्री और पुरुष तुझे चाहते हैं। Lord, speak to them. उनके हृदय से बात Change their कर, heart, Lord. उनके हृदय को तू बदल दे, Change their soul, Lord. उनके प्राण को बचा प्रभु। Lord, let there be a special touch from you, ओ Lord. आपसे एक बड़ा स्पर्श उनके जीवन के अंदर विशेष स्पर्श होने दे। They may feel that you're touching today. ओ प्रभु, वो होने दे कि वो अपना तेरा स्पर्श जानने Oh, पाए। Lord, have mercy upon. ओ प्रभु जी, हम पर दया कर, They may find you, Lord. ओ ताकि वो तुझे पाए प्रभु They जी। may find you, Lord. वो तुझे पाए प्रभु They जी। may get healed today, oh ओ God. आज वो चंगाई प्राप्त करने They पाए, may get saved today, oh God. आज वो प्रभु वो बचाए They जाए। may have a obedient spirit today, ओ oh उनके God. अंदर एक आज्ञाकारी की आत्मा तू डाल प्रभु Oh जी। Lord, your Oh. prayer answering God. तू हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर Because है, you said, क्योंकि तूने कहा where two or three gathered in my name. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, And whatsoever you ask in my name, और मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगो it shall be given unto you. उसे तुम्हें दिया जाएगा। It's your promise, ये Lord. तेरी प्रतिज्ञा है प्रभु Lord, जी। hear our cry. ओ हमारी तू बिनती को, गिड़गिड़ाहट को सुन प्रभु Lord, जी। somebody is calling you today. ओ प्रभु, कोई तो तुझे पुकार रहा है प्रभु Lord, जी। some brothers are calling you, ओ Lord. कोई भाई तुझे बुला रहा है Some प्रभु, sisters are calling और you, कोई Lord. बहन तुझे पुकार रही है। They're in need of you. वो तो उनको तेरी Oh, जरूरत Lord, है, change their heart, Lord. उनके हृदय को तू बदल दे। As we are closing this, और प्रभु जी, Service. सभा को हम जब समाप्त कर रहे हैं, that the peace which passeth all understanding, तेरी शांति जो सारे बातों को remain with सबसे, us, Lord. ओ हमारे तू साथ में रहे, And तेरी once again, we are शांति। coming in the evening. और जब शाम को फिर लौटेंगे प्रभु, Lord, again bless us, O फिर Father. एक बार तू हमको आशीषित कर, Lord, bless us with the Holy Ghost. और तेरी आत्मा से प्रभु भर Bless us दे, with thy Holy Scripture. और तेरे वचन के द्वारा तुमसे बोल So that बातचीत we may कर। worship you in the ओ truth. ताकि हम तेरी सच्चाई के अंदर प्रभु Thank you, आराधना Lord, करें। for having spoken to our heart today. और धन्यवाद हो प्रभु, तूने हमको हमसे बात किया, Thank you for thy servant who ministered us. और अपने दास thy को word. तूने तो वचन उनके द्वारा जो भेजा, Bless each and every one. और सभी को तू भी आशीष Thank you कर। for sending thy Holy Ghost. तेरी आत्मा को दे भेजा, इसके हम धन्यवाद करते हैं We लॉर्ड। praise you and thank you. तुझे धन्यवाद करते In हो, Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते सुनर कबूल कर। Amen. आमीन। Amen. इस गीत को हम लेंगे, टेक द नेम ऑफ जीसस विथ यू, precious name, precious name. Oh, how sweet, precious name. G chord, take the name of Jesus. G. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Precious man, how sweet, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven.
comfort and joy of heaven. Praise God. हम लोग बैठ सकते हैं, कुछ सूचना हम सुनेंगे।